ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਇਹਨੇ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲਾ ਦਿਓ ਥੱਲੇ ਇਹਨੂੰ। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਿੰਜ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਜ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਹਰ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਲੀਮ ਭਾਈ, ਤਾਹਰ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਹਰ ਭਾਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਹਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ। ਤਾਹਰ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਾਰੇ ਚ ਫੈਸਲਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸ ਯਾਰ? ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਮੁਫਤੀ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈਏ ਹੁਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਿਆਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਆਨਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਾਂ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਆ ਜੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-3 ਕਰਨਾ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾ ਦਿਓ ਸ਼ੋਅ। ਐ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਅਲੀਮ ਭਾਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਹਿਣਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ। ਧਾਂਦਲੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੀਕਣੀ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਰਜ਼ਈ ਕਿਹਾ ਹੀ ਚੀਕਣੀ ਲੱਗ ਪਿਆ ਭਾਈ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ੋਅ ਟਾਈਮ ਲਾਓ ਜੀ। ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਲਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਰੁਕ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੰਬੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਤੰਬੀਆਂ ਕਿਉਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਓ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੰਬੀਆਂ ਪਹਿਲੂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਤੰਬੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੁਣੇ ਤੰਬੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰੁਕੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰਾਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਫਸਣ ਕਿਉਂ ਡਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੇਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ जी। रहमत बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अलीम भाई, बराए मेहरबानी आप इन लोगों से सजेशन मत मांगे। जी हाँ, कालू साहब की बात बड़ी रीजनेबल है। उन्होंने कहा कि पहले मुझे इजाजत दी जाए और मैंने सवालात पूछने हैं। 20 मिनट 25 मिनट का जो आपने टाइम पीरियड रखा है वो रखें और ये लोग जवाब दें उसका, इधर उधर मत जाएं जी, ठीक है? और उसके बाद कानू साहब को मौका दें। आप माइक और कंट्रोल अपने पास रखें, ना मेरी सुने ना किसी और की। ये बात जो है इस तरह चलाए, किसी को मौका नहीं दी। मेरी गाल सुन लो दी, छोटी जिन्नी गाल तो वड्डी सारी गाल। ये बात सही है। अमरजीत साहब रुको, मैं उन्होंने खुद किया है, रुको। अच्छा रहमत बाबा गल पता कितने फसी है? कानू साहब ये कह रहे ने कि मेरा जस्ट जवाब देना ना जी, वो अगर माड़ा जिहा भी इररेलेवेंट होया ते उस टाइम ही बंदे नूं थल्ले ला देना है। नहीं, इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए। अगर जी ਇਹ ਤੇ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ 125 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਲਾ। ਵੇਖੋ 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 ਨਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਰਹਿਮਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अलीम साहब, मेरा क्या ख्याल है? अलीम साहब, हम हर किस्म का एक्सपेरिमेंटेशन कर चुके हैं, ये भी करके देख लेते हैं यार, क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है। लेट्स सी, हमने हर किस्म का एक्सपेरिमेंट कर लिया। साहब मैं बताऊं, अलीम साहब अगर इजाजत दें तो ठहरे, अगर इजाजत दें तो मैं अर्ज करूं। सारे लोग नीचे जाएंगे, मैं दोनों बंदों को अपना 2-2 मिनट मेरे ख्याल में रहमत बाबा ठीक है। हाँ जी, जिस तरह डिसाइड कर ले दोनों फ्रीक, हम सबको नीचे उतार दे। आमिर नजीर साहब और कालू साहब को सिर्फ ऊपर रहने दे, ताकि 2-2 मिनट में बोले और 3-3 बारियां एक टॉपिक पे रहेंगी। हाँ ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, चलें। ठीक हो गया। अच्छा मैं दोस्त नीचे तशरीफ रखें, सिर्फ आमिर नजीर साहब और कालू साहब ऊपर रहेंगे जी। शो ऑन करें, शो ऑन करें। अब 2-2 मिनट का मैं टाइम आप लोगों का लगाऊंगा। पहले कालू साहब बात करेंगे, कालू साहब अपनी बात जो है वो पूरी आपको समझाएंगे। आप कोशिश करेंगे, बल्कि कोशिश नहीं करेंगे, आप बाकायदा तौर पे उसको जो भी बात करेंगे वो हाशिया राय नहीं करेंगे। आमिर नजीर साहब बिल्कुल भी अपने अल्फाज नहीं इस्तेमाल करेंगे।
آپ اس کا جواب دیں گے اور آپ جواب کو لنک کریں گے. تب تک چونکہ 2 منٹ کے اندر آپ نے ختم کرنا ہے. اگلے 2 منٹ کے اندر کالو صاحب اگر آپ نے جواب ٹھیک نہ دیا ہوا تو ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے کہاں پہ جواب وہ غلط دیا ہے. آپ لوگوں کو 3 باریاں ٹھیک ہیں یا 4 باریاں ٹھیک ہیں؟ ایک واری جی کام ہو جانا ہے تو آن کرو. 3 باریاں آپ لوگوں کی 2 منٹ پہلی باری جی کام ہو جانا ہے. لیکن ٹھیک ہے آپ ایک باری میں جواب دینا چاہتے ہیں تو دیں, لیکن وہ دوجا بھی شو آن کرنا پہنتا ہے نا. میں وہ کر دوں گا نا نیچے میرے ہاتھ میں, مجھے وہ میں کرتا ہوں. جی کوئی کالو نا. صاحب 1 2 3 اور کالو صاحب آپ مائک پہ آ جائیں اور آپ بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمد رضا خان بریلوی صاحب فرماتے ہیں کہ وہابیوں کے جھوٹے خدا. وہابیوں کا خدا جو ہے احمد رضا خان بریلوی صاحب فرماتے ہیں کہ وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے جو جہت مکان مہیت سے پاک نہیں, ایسے کو جس کا جو کھانا پینا, پیشاب کرنا, پخانا کرنا, ناچنا, ٹھڑکنا, نٹ کی طرح کھیلنا, کلا, عورتوں سے جمع کرنا, لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا, تاکہ مخنث کی طرح خود مفعول بننا, اور کوئی خباثت کوئی فضیحت اس کی شان کے قائل نہیں. یہ فرماتے ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب وہابیوں کے خدا کے متعلق کہ وہابی ایسے کو خدا مانتے ہیں جو مکان زمان جہد سے پاک نہیں ہے, اور دوسرا وہ کھانا کھاتا ہے, پیشاب کرتا ہے, پخانا کرتا ہے, ناچتا ہے, ٹھڑکتا ہے, اور عورتوں سے جمع کرتا ہے, اور لواطت جیسی خبیث برائی ہے اس میں, اور مخنث بنتا ہے, ہجڑا بن کے برائی کرتا ہے اور کرواتا بھی ہے. یہ ہے احمد رضا خان بریلوی صاحب جو وہابیوں کے خدا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہابیوں کا خدا ایسا ہے. کیا یہ ان کے نزدیک گستاخی نہیں ہے؟ کیا وہابی ایسے کوئی خدا سمجھتے ہیں کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے جو فرمایا ہے, یہ مولوی صاحب جو ہیں عامر نذیر میرے مد مقابل, ان کا خدا ایسا ہی ہے؟ اگر ان کا خدا ایسا ہے تو ٹھیک ہے, احمد رضا خان بریلوی صاحب نے ٹھیک فرمایا. اور اگر یہ ایسے کو خدا نہیں مانتے تو پھر احمد رضا خان بریلوی صاحب نے جھوٹ بول کر گستاخی کی ہے خدا تعالیٰ کی. اور اگر اس نے خدا تعالیٰ کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں تو کیا وہ مسلمان ہے؟ اور اگر یہ واقعی ایسے کو خدا مانتے ہیں تو پھر یہ کیسے مسلمان ہوئے؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ جو احمد رضا خان بریلوی صاحب نے ان کے خدا کا نقشہ کھینچا ہے انہوں نے درست کھینچا ہے؟ جو احمد رضا خان بریلوی صاحب نے فرمایا ہے کہ ان کا خدا جو ہے وہ لواطت کرواتا ہے, ان کا خدا جو ہے مخنث ہے, ان کا خدا جو ہے جمع کرتا ہے عورتوں سے, ان کا خدا جو ہے وہ پیشاب کرتا ہے, پخانا کرتا ہے, ناچتا ہے, اگر یہ ان کا خدا ہے تو پھر یہ مسلمان کیسے ہیں؟ جی امن صاحب مائک. ٹھیک ہو گیا جی. یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ بھئی بتائیں کہ کیا یہ ایسے خدا کو مانتے ہیں جس کے بارے میں انہوں نے عبارات پڑھی ہیں. میرا بھی ان سے سوال ہے جی. اسلامی قربانی کتاب ہے قاضی یار محمد کی لکھی ہوئی, اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسیح موعود نے اپنی ایک دفعہ یہ کیفیت بیان کی کہ ان پر جس طرح ازدواجی کیفیت ہوتی ہے نا شوہر کی بیوی پر, بالکل ایسی کیفیت آ رہی تھی. اور ان کے خدا نے جس کا نام یلاش یہ بتایا کرتے تھے, انہوں نے ہمارے مسیح موعود سے رجولیت کا اظہار فرمایا. میرا بھی یہ سوال ہے ان سے کہ کیا آپ ایک ایسے خدا کو مانتے ہیں جو آپ کے مرزا صاحب سے رجولیت کا اظہار فرمایا کرتا تھا؟ کیوں جی, کیا آپ ایسے خدا کو مانتے ہیں جو رجولیت کا اظہار کرتا تھا آپ کے مسیح موعود کے ساتھ؟ اس کے بعد ان کا بیٹا ہے شیخ عبد الرحمن مصری جو آپ کا ہی اپنا ہی مرزا صاحب کا ہی مرید تھا, اس نے ہائی کورٹ عدالت میں لاہور میں ایک بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ خلیفہ سخت بد چلن ہے, یہ تقدس کے پردے میں عورتوں کا شکار کھیلتا ہے. اس کام کے لیے اس نے بعض مردوں اور بعض عورتوں کو بطور ایجنٹ رکھا ہوا ہے. ان کے ذریعے یہ معصوم لڑکوں اور لڑکیوں کو قابو کرتا ہے. اس نے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی ہے جس میں مرد اور عورتیں شامل ہیں, اور اس سوسائٹی میں زنا ہوتا ہے. یہ ماخوذ از ٹریکٹ بنوان میاں محمود احمد صاحب پر ان کے مریدین کے الزامات اور بریت کا یہ اس سے لیا گیا 9 دسمبر 1938 کا ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے جس کو مسیح موعود مانا, کیا وہ کسی ایسے خدا کو مانتا تھا جو اس کے ساتھ رجولیت کا اظہار کرتا تھا؟ اور اس کے بعد اس کے بیٹے کو آپ نے مسلم موعود مانا, کیا ایسے بندے کو آپ نے مسلم موعود مانا جو لوگوں کی عورتوں کے ساتھ شکار کھیلتا تھا, لوگوں کی لڑکیوں کو وہاں پر جو کام کرنے جاتی تھی ان کی عزتیں لوٹتا تھا؟ کیا آپ نے ایک ایسے بندے کو مسلم؟ جی آپ نے دیکھ لیا ان کی جو اوقات تھی. اب میں نہیں آگے بات کروں گا کیونکہ انہوں نے اپنی اوقات دکھائی ہے, بجائے اس کے کہ یہ جواب دیتے کہ ان کے والد صاحب جو احمد رضا خان بریلوی صاحب ہیں. آپ علیم صاحب موجود ہیں؟
अलीम जी जी साहब मैं मौजूद आपकी हैं। बात सुन रहा हूँ, मैं आपकी इन्होंने बात सुन रहा हूँ। उस सवाल का जवाब दिया है। अगर इनमें ज़रा सी भी गैरत होती और वाकई ये मुसलमान होते और अपने खुदा की ये गैरत रखते होते तो ये ज़रूर जवाब देते। ना इनमें खुदा की गैरत है, ना ये मुसलमान है, और ये इल्ज़ाम लगाने शुरू हो गए हैं जिस तरह राजपाल लगाता था। राजपाल में ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, इनके अपने इमाम ने वो लिखे हुए हैं, इनके अपने इमाम ने तिब्रे इस्लाम में वो सारे इल्ज़ामात लिखे हुए हैं। अगर किसी के इल्ज़ामात लगाने से कोई सच्चा हो जाता है कि वो गुनाहगार साबित हो जाता है, तो इस तरह हज़रत आयशा भी साबित होगी गुनाहगार, क्योंकि इल्ज़ाम लगाने वाले खुद साहबी थे। उन्होंने उन पर नाउज़बिल्लाह ज़ना के इल्ज़ाम लगाए दिए, तो ये अपनी वालदा को इस तरह नाउज़बिल्लाह ज़नाकार साबित कर सकते हैं। मैं तो फिर कह दूंगा कि अहमद नज़ीर की वालदा जो है वो ज़नाकार औरत थी, महल्ले में नहीं, वो मेरा लोगों नहीं का- हाँ, नहीं, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है ना। देखें, इल्ज़ाम लगाने से अगर कोई गुनाहगार साबित होता है तो अपनी वालदा को ये गुनाहगार माने ना। हाँ, मैं शिया कहता हूँ नहीं, कि मैं इनकी तो वालदा मना एक कर रहा हूँ, ज़नाकार आपको औरत थी, मना कर रहा महल्ले में वो लोगों का शिकार अब आपके करती पास थी। एक एक टर्न है दोनों के पास। नहीं, मेरे मैं पास। इससे आगे बात ही नहीं करूंगा, उसने जवाब दिया है। मेरे पास क्यों टर्न, मैं नहीं आगे बात करूंगा। बात क्यों नहीं करूंगा कि इसने जवाब नहीं दिया। इस तरह मैं भौंकना ये भौंकता रहेगा तो मैं सुनता रहूंगा कि हाँ हाँ बड़ा अच्छा भौंक रहे हो। अगर इसमें गैरत है तो जवाब दे। जो अहमद रज़ा खान बरेलवी ने कहा कि इनका खुदा नाचता है ठरकता है। दूसरा भाई यज़ीद बुस्तामी कहता है कि खुदा जो वलीउल्लाह हैं वो खुदा के दुल्हने हैं। इसी तरह का वो मफलूज दिमाग का आदमी था जिसने वो मिर्ज़ा साहब के बारे में लिख दिया। भाई यज़ीद बुस्तामी कहता है कि जो वलीउल्लाह हैं वो खुदा के दुल्हने हैं। अब ये अहमद रज़ा खान बरेलवी का जवाब इसने नहीं दिया, इसलिए ये जो शराइत थी उससे ये भागा है। इसमें जब गैरत हो अपनी बात का जवाब दे, आगे बात चलेगी। अगर आपने इससे आगे इसकी बात सुनी तो फिर मैं नीचे उतर जाऊंगा। जी आमिर साहब, ये आपके पास मेरा भी चैलेंज आखिरी आपने देख लिया। मैंने आपको कहा था एक बार ही काफी है। इनमें हिम्मत नहीं है अपने मुतल्लक बात सुनने की। ये सिर्फ लोगों की माओं को बदकार कहना जानते हैं। ये अपनी माओं के बारे में नहीं बताते कि हमारी नानी वहां काम करती थी, हमारे उस 2 नंबर खलीफा ने उसकी इज्जत लूटी, वहां से ये नापाक नुतफा आया और आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने पर भौंक रहा है। ये नापाक नुतफा, ये जनीम जिसकी नानी वहां पर काम करती थी, और शेख अब्दुर्रहमान मिस्री ने जिसके बारे में कहा था कि इस 2 नंबर खलीफा ने अपना वहां पर एक ग्रोह पाला हुआ है। यार, दोनों वो लोग अब लड़कियों हाशिया को- नहीं कर रहे हैं। एक मिनट आप सब्र उन्होंने भी रखें। की है, उन अब आप भी कर लड़कियों रहे को हैं। उन्होंने ये आखिरी बारी है। इसी काम के लिए रखा हुआ है कि वो लड़कियों को घेर के लाते हैं और ये उनकी इज्जत लूटता है। ये 2 नंबर खलीफा ने इनकी नानी की इज्जत लूटी। ये वहां से नुतफा आया और आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डायरेक्ट घराने पर नहीं भौंकने करें, लगा। अमरदीप ये साहब। उस 2 नंबर खलीफा की मानवीय औलाद है। मैंने आपको दर्जनों दफा बताया है। मैं अब दोनों का अगर नहीं, मुझे एक मिनट बात करने दे। अगर ये उस 2 नंबर खलीफा की ये 2 नंबर नुतफा ना होता, ये कभी अल्लाह के नबी के घर पर ना भौंकता। वो जनीम है, वो 2 नंबर नुतफा है, कादियान से आया हुआ नुतफा है। और मैं कसम खा के कहता हूँ कि इन चारों की नानियां वहां काम करती ठीक हो थी गया, ठीक हो और ये गया। वहां आप से गंदे बात नुस्खे खत्म आए करें, हैं। मैंने उनको भी अगर ये रोका है। वहां ना होते, आपको भी इनके ठीक 2 हो नंबर गया जी। खलीफा अब ने आप इनकी लोग का नानी शो की इज्जत खत्म ना है। लूटी होती, अब नहीं कर सकते ये वहां बात से आप। गंदे नुस्खे ना आए होते, तो ये कभी अल्लाह के नबी के घराने पर ना भौंकते। सुन ये लिया जे, ठीक हो गया जी, बस सुन लिया जे खबीस दियां गल्लां। ये अपने प्यो दा जवाब नहीं दिता। अहमद रज़ा बरेलवी इल्जाम नहीं। मुक गई गल। अमन जवाब नहीं दिता खबीसा ओदा। यार नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, वो ऐसे नहीं बेगैरत चलेगा, इंसान ऐसे है, नहीं तेरे चलेगा। बेगैरत अमन की नज़ीर साहब नानी रुके, से अमन भी नज़ीर साहब बेगैरत रुके, नहीं सी। अमन नज़ीर साहब एक सेकंड रुके, अब एक सेकंड रुके, थोड़ा सा माहौल ठंडा हो जाए। ये मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग जो है ना ये बात इस तरह जो है ना वो नहीं कर सकते। एक सेकंड जरा मुझे ना अब ये क्या यार, ये क्या बात है, ये क्या मसला है? तेरे नाम पे करूं जां फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, ये देखिए अलीम दो साहब, जहां से भी मीर अहमद बाबा, देख नहीं लिए जी जी। बरा, मोहतरम ये जरा चुप कराइए करूं इनको। क्या करोड़ों जहां आपने इसको क्यों ऊपर ले नहीं। लिया ये आमन बात? नजीर भाई जिंदाबाद। नाच सुन लो यार बेशर्मो, नाच सुना रहा है अगला, नाच सुन लो बेशर्मो। और लानतिया उसको कह के ना सुना को बात हो। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। बात सुने भाई साहब, ये अलीम अहमद साहिब रुक जाए। जी जी, देखें, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। मैं अनिल इस भाई जरा सुने, जरा प्यार से एक बात थोड़ी सी सुने, अलीम प्यार से। साहिब उनको तो कर लेने दें, इबारतों का मुकाबला इबारतों से होना था, इबारतों का मुकाबला इबारतों से होना था, इबारतों का मुकाबला इबारतों से होना था। पहली टर्न में तो इबारतें ही पढ़ी गई,
लेकिन आपने खुद देख लिया कि इबारतों को छोड़कर दूसरी ही टर्न में किस तरह राह फरार इख्तियार की। मेरे 2 मिनट थे, इन्होंने मेरे 2 मिनट नहीं, आपने अलीम यार साहब सुन मुझे लो पूरे यार, करने अभी दिए। ओ भाई मेरी तुम्हें आखिरी मौका बारी थी, दिया जो था, 2 मिनट मेरे थे, तुम्हें जो मौका दिया था, उस वक्त बात मिनट नहीं दिया, अभी तबसरे का मौका है। अभी लोगों के मेरे 2 मिनट थे, मेरी आखिरी आपका शो टाइम, आपको शो टाइम का मौका दिया था, शो आपने टाइम नहीं, अपना मोस्ट साथ आपने कहा पहली बारी किया है, देखें 100 बार कर चुका है, मेरी आखिरी तो बात। इम्तिहान हमारा। रुके जी, कालू साहब आपकी बारी नहीं बनती थी क्योंकि पहली बारी अब सवाल आपने रखा था, एक शेर उन्होंने सुन लो, जवाब दिया। एक शेर सुन लो लीम साहब, मैं कुछ नहीं किसी को देखें मेरा टाइम बनता है ना, पहली बारी में एक और शो लगा दो, फिर तीसरी इन्होंने एक और शो लगा दो। तबसरा लिया जा रहा है, सब तो लोगों ने कैसा परफॉर्म किया है, सुन तो लो लोगों के परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में लोगों का तजिया सुन लो। रुके। अच्छा कालू साहब, आपकी बारी पहली थी, फिर वो बोले, फिर आप बोले और फिर वो बोले। नहीं बात खत्म हुई है। मैं बोला हूँ, ये बोले हैं। हाँ फिर वो बोल, हाँ जी, फिर आप बोले हैं, तो मेरी फिर एक दूसरी बार बारी बोले कहाँ हैं, गई? एक दो फिर नहीं, आपको समझ नहीं आ रही, पहले आप बोले फिर वो बोले, फिर आप बोले फिर वो बोले। दो टर्में हो गई हैं, और ऑन करो, शो ऑन करो और देना शो नहीं ऑन अलीम साहब बात चले तो जी। लोगों का तजिया ले ले, इसको 2 मिनट चुप करा ले। अलीम साहब जवाब इन्हां दे प्यो नहीं अलीम साहब शो ऑन करो जी, दिन्ने आ जवाब। बात सुने, फैसला लोगों जवाब ਅਸੀਂ जेल ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ, शो ऑन करो, जल्दी करो, देर ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ। आपने यहाँ पे गुस्ताखी करवानी है अकाबरीन की, तो फिर तो नहीं आप हम नहीं continue- करवा रहे भाई, हम नहीं करवा रहे। नहीं, हमने तो आपने उसके इन बाद सब करवा दिया। लोगों को ऊपर ले लिया है, जो कि जी, जी। प्रूव है कि इन दोनों को मौका दिया गया और बात नहीं हुई। बाबा अभी पहली भी टर्न में बात वापस नहीं होंगे, लेकिन दूसरी टर्न में अंदर रुके जी रहमत भाई बात ਭੌਂਕਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਇਹਨੂੰ। ये देखे जी, मैं ये कह ਕੁੱਤਾ रहा ਜਿਹੜਾ हूँ, ਭੌਂਕੂ ਹੈ, ये देखे जी रहमत भाई बोले। अलीम साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने इन दोनों लोगों को मौका दिया, तो अगर 2 लोग बात नहीं आपस में कर सके तो आपने इतने लोगों को ऊपर ले लिया, तो कैसे बात होगी? ये तो सिर्फ वो एक चिड़ियाघर बनाने वाली बात है यहाँ पे। जी इसीलिए मैं रोक रहा हूँ और इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप हमें अच्छी सी बात बताएं। नात सुन रहे थे रहमत मेरी बाबा, बात तो पहली सुने ना आवाज आपने यार, बुलंद एक की सेकंड है, यार, रुक नात जाए के दौरान। फैसल भाई, रुक जाए, मेहरबानी करें, रुक जाए। रहमत साहब, इसी गरज से मैंने आपकी तरफ आया हूँ कि अच्छी सी बात हमें बताएं, हम आगे चले, यही तो शो मसला ऑन है। करना है कि मैं नहीं, अपने रुकिए, काम आप छोड़ने यार, का रुकिए, हम अगली बात करेंगे। रहमत बाबा साहब, इसीलिए मैं आपकी तरफ आया हूँ, बात करने से पहले भी मैंने आपसे बात की थी, अब हमें कोई अच्छी सी बात बताएं, हम आगे बात बढ़ाएं। जब मैंने देखा अच्छी सी कि बात नसीहत अपनी करें। तरफ जा रही है, मैंने वहां पे बात रोकी। साहब तो इनको अच्छी सी नसीहत करें। बात ये है कि ये जो डिफरेंसेस हैं या अकायद पे बात जो हैं, ये लोग नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे जो हमारे गैर अहमदी भाई हैं, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है, जवाब नहीं देंगे ये, बल्कि आपको जवाब देंगे जी ये बताओ, ये जैसे उनका बड़ा जेन्युइन सवाल था, मैं विदाउट एनी बायस कह रहा हूँ कालू साहब का, उन्होंने बड़ी तमीज़ से सवाल किया, जवाब मांगा, और आमिर नज़ीर साहब एज़ यूजुअल वो जवाब नहीं दे सके। ये कभी भी अपने अकायद पे बात हरगिज़ नहीं करेंगे। अभी बात ये है कि जो गैर अहमदी भाई हैं ना, इनको कहें कि आप जी हमें अपने इस्लाम की तबलीग करें, मिर्ज़ा साहब की बात नहीं करनी, जमात अहमदिया की नहीं करनी, आप अपनी सीरत, अपने अपने फ़िरके करें, अच्छाई बयान करें, हमें अट्रैक्ट करें, हमें बताएं कि अगर हम सिरात मुस्तकीम पर नहीं हैं और आप सिरात मुस्तकीम पर हैं, हमें अपने दीन की तबलीग करें, हमें ताना ना दें, हमसे सवाल ना पूछें। जमात अहमदिया का फैसला हो चुका, वो एक खुली किताब है, आपने सारे इतराज कर मुझे लिए। 2 मिनट दें, फिर मैंने बिजी हो जाना। बात तो सुन ला मामा, आराम ना किन्नी करो। नहीं रहमत बाबा साहब, रहमत बाबा अच्छा, साहब ऐसे नहीं रुके। जी जी जी, करनी बदतमीजी ना कर, ओ यार चुप रुके कर, नहीं आराम रुके से। ज़िया साहब, रुके। यार, हमारे पास फे तेनों मामे दा स्वाद मैं रुके, देवां। नहीं ज़िया साहब, मैं तू उनको क्या भी- स्वाद दे? अलीम साहब आपकी गिरफ्त होनी चाहिए, अलीम बीच साहब में बोलने वालों को आप गुफ्तगू हुई है ना, अलीम साहब अभी जितनी गुफ्तगू हुई है सब ਤੁਹਾਡੀ। अच्छा बहुत खूब। अब मैं माइक म्यूट करने पे रहूंगा, फिर आप कोई बात भी नहीं मुझे करते। ये रहमत बाबा की बात का जवाब देने दे, उसके बाद मैंने बिजी हो जाना 10 मिनट के लिए। इसके बाद इब्ने माजा साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, इब्ने जिससे माजा मर्जी साहब लेके पढ़ेंगे, ज़िया हम भाई ज़िया और साहब भी फैसल भाई मौजूद बात हैं। करें 10 कोशिश मिनट। करेंगे ज़िया साहब की और इब्ने माजा साहब की भी आज बात हो। जी आमिर नज़ीर साहब, अभी आपके एक पास तो मैंने 2 मिनट है बात ठीक करने है, हैं। ठीक है, मैंने पहले अर्ज किया था जमील साहब, ये फैसला अवाम ने करना है,
आपने नहीं फैसला करना कि उसकी बात का मैंने जवाब दिया या नहीं, मेरी बात को इसको चुप करवाएं। अब मैं फैसला करता हूं आपकी बात का कि आपने इरेलीवेंट बात की है या रेलिवेंट बात की है, ना आपने मेरा फैसला करना है। दुनिया ने देख लिया है कि मैंने पहले चैलेंज किया था कि ये एक एक टर्न में भाग जाएगा, और इनको मैंने सबको भगाया हुआ है। बातल से दबने वाले ए आसमां नहीं, हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। 2 दफा तल्लत साहब की ब्राड और सैनी साहब की ब्राड से भगाया है, तीसरी दफा सैनी साहब की ब्राड पे ये गया था, ये वहां से तंबी गिल्ली करके भागा मुझे है। जवाब देने दें इनको सुनने अलीम की भाई। हिम्मत नहीं है, ये सिर्फ सुनाना जानते। ये मुस्लिम उम्मत अलीम को भाई जवाब देने दे, से खामोश हो तो जवाब खामोश करवाएं इनको। अपनी हम ये तो बात भाग गए हैं, तो खुश हो इनकी जाओ। तकरीर हमने लंबी सुनी है, हमारी बात नहीं सुन सकते, खामोश करवाएं इनको। अगर आप में हिम्मत नहीं है दूसरे की बात सुनने की, तो दूसरे को गाली ना दिया करें, दूसरे की बात में पढ़ के सुनाया करें। अगर आप अपने अकाबरीन के मामले में इतने सेंसिटिव है ना, तो जाके अहमद रजा बरेलवी का फतवा ना खोल के चेक किया करें, बहुत शुक्रिया अपने जाके अब्दुल मिस्री का फतवा चेक किया करें, मोहम्मद अली लाहौरी का चेक किया करें, फखरुद्दीन मुल्तानी का चेक किया बहुत करें, शुक्रिया और ना जी, मिस्रियों का इब्ने पता माजा करो। अलीम भाई मुझे इसको जवाब देने बहुत दें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, दे बहुत सक शुक्रिया जी इब्ने माजा साहब। चेक कर लेना खलीफा अव्वल दा पुत्र जेड़ा खामोश रहे, नहीं यार खजारे खामोश रहे, कोई बंदा नहीं बोलेगा अभी। जी इब्ने माजा भाई, वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज है? मैं सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਵਾਲੇकुम सलाम, ठीक ठाक। बाकी सारों ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ। अच्छा जी, बाकी सब माइक म्यूट ने ਸਭ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ है। व्हाट्सएप पे कर लें, यहाँ पर एक वक्त महफिल जमी हुई है, अगर इतनी को प्राइवेट बात है व्हाट्सएप पे जाके कर ले, सबको बार बार नीचे मैं बात नहीं कर रहा। क्या ये क्या मतलब आपकी लाइव है? और नहीं है। दूसरा मुफ्ती साहब की आपकी कॉल लाइव एक्सेप्ट नहीं है। करें यार, 175 लोग देख रहे हैं, एकदम सबको नीचे उतार आपकी दो। लाइव नहीं है। मेरी ओ बात भाई सुनो। आप अलीम साहब, एनालिसिस मैंने करना आपसे बात चाहते हैं करी, जो इसको बात मेरी नहीं बात इसको चुप सुने, कराओ। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। कोई बंदा माइक नहीं खोलेगा। इब्ने माजा साहब माइक आपके पास है जनाब अली, नहीं आप नहीं, बात इनको करें। नीचे उतारे, सबको नीचे उतारे अलीम साहब। लेकिन ये कोई बंदा बोलेगा नहीं। मैंने मैं सिर्फ आपसे बात करनी, मैं 2 मिनट के लिए आया हूँ, सिर्फ आपसे बात करनी है, और मैं ऑन द माइक बात करूंगा, पीछे नहीं बात करूंगा। सबको नीचे उतारे, बद जुबान है सारे, नीचे उतारे इन सबको। व्हाट्सएप पे कर ले, इतनी को प्राइवेट बात है, नीचे डिक्टेशन लेने की क्या आप जरूरत है? कमोट हो, रुके। आपसे मैं बात अच्छा, नहीं कर रहा। सुनिए जी, एक सेकंड जरा। इब्ने माजा साहब कुछ मेरे ख्याल में बोलना चाह रहे हैं, तो इब्ने माजा साहब बड़े अगर मोहतरम आपने हैं। हमें नीचे उतारा, हमारे साथियों को नीचे उतारा, तो फिर आपने आपस में बातें करनी है तल्लत साहब की तरह, कल की सर, तरह। हमने चले जाना है, यहाँ पर कोई अलीम मुसलमान साहब, नजर नहीं आएगा आपको। मैं सिर्फ आपसे बात करना चाह रहा हूँ, बाकी सबको नीचे उतारेंगे तो फिर मैं बात नीचे करूंगा। उतारा किसी मुसलमान को, तो हम सब यहाँ से नहीं चले ऐसी बातें नहीं है। कोई यार ये आपस में आप लोग जो शुरू हो जाते हैं ना, मुसलमान को पार्टियां ये कोई बातें बनती नहीं है। अलीम साहब, चलो मैं अलीम आपको भी साहब, टेलीफोन कर रहा आप हूँ। कंटिन्यू रखें, आप कंटिन्यू रखें। अलीम साहब, आपको मुझे एक मुबारक मिनट हो, बात करने दीजिए। आपको इब्ने माजा अलीम भाई, साहब मेरी बात आपको सुनो ना। मुबारक हो। एक मिनट ठहरे, आपको मुबारक हो। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब भी डिबेट होती है मौजू रख के होती है, ठीक है जी। हाँ जी, आप यहाँ पर बैठ के जो है वो अकाबरीन की बेइज्जती करवा रहे हैं, अब बहुत ठीक है। शुक्रिया इब्ने माजा साहब, बहुत शुक्रिया, जी साहब, बताइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लगा दे इब्ने माजा साहब अपने जो इब्ने माजा आपके साहब, है ये कालू को बताना था जिसने ओ हज़रत खामोश आयशा की हो, तरफ मुझे ना मामला ये आमिर नजीर को जवाब देने दे। अलीम कालू साहब लेके गया था हज़रत आयशा की तरफ मामला। रुके इब्ने माजा साहब, आपको ये हक किसने दिया है कि आप मुझे बताएं कि मैं बेइज्जती करवा रहा हूँ? नहीं, इब्ने माजा साहब के ना आप गुस्सा करें, मुझे जवाब देने दें। रुके मैं इब्ने माजा साहब से पहले मुखातिब हो जाऊं। ये कुछ जो पर्ची लेके आया जी। साहब कि आप 200 बंदे के सामने आके मुझे ये कहें, सारे बंदों ने देखा है इधर बात हो रही है, और मैं सिर्फ एक कोशिश कर रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ कि ये कैसे बात करनी है। इब्ने माजा साहब बहुत मोहतरम है आप, लेकिन आपने ये हरकत ठीक नहीं की है। बराए मेहरबानी ये हरकत, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, 200 बंदे के सामने आपको ये बात करनी बनती थी। समझदार बंदे हैं आप। अलीम साहब मेरी बात तो अब होने दें। रुक जाए ना, जो को करवाया, रहमत बाबा करवाया, उन्होंने दसो। रुक जाए। मैं पहले भी इसीलिए बुजुर्गों से साथ मशवरा कर रहा था और 2 टन में बात की है। अभी जितनी गाली पड़ी है मैं आपको बता देता हूँ कौन सी ब्राड पे ज्यादा। क्या बात कर रहे हैं आप? अलीम भाई उनकी आप बात पकड़ के बैठ गए हैं, आपको कह रहा मुझे जवाब देने दे, उसकी नहीं आपको तरफ आ रहे। यार कालू साहब देने देता हूँ। बात सुने, मैंने भी बात करनी है ना। छोड़ दें उनको। माजा साहब ने क्या कह दिया आपको? मैंने आपसे नहीं कहा था कि इसको खामोश करवाएं, ये इसने इरेलेवेंट बात शुरू कर दी। अब मैंने आपसे कहा था ना इसको खामोश करवाएं। मैं रोटी कहाँ कर रहा है 10 मिनट। सुने, बात करने का मुझे हक क्यों नहीं है? जब मैं बात करना चाहूं तो आप मेरा हक क्यों छीन लेते हैं मुझसे?
मेरे ऊपर आके 200 बंदे के सामने अगर कोई बंदा ये इल्जाम लगाए कि मैं गालियां पढ़वा रहा हूं, मैं कटहरे में आ गया हूं, तो मेरी क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये फतवे कहां से आ गए भाई? चलें जी कालू साहब अब अपनी बात करें, अब आए। हलीम साहब देखें, बात रखनी थी, वो जरूरी थी, हाँ जी वो सुनिए, मैंने रख दी है। जब इनसे बात शुरू हुई थी, आप गवाह हैं, सारे दोस्त गवाह हैं यहाँ पर, ये शर्त थी मेरी तरफ से कि जो सवाल किया जाना है उसके मुताबिक जवाब देना है। मेरे ऊपर जो सवाल उसके बाद करेंगे मैं उसके मुताबिक जवाब दूंगा। जब मैंने सवाल किया कि इन्होंने जवाब दिया अपने सवाल का, उसके मुखालफ इन्होंने इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। मैंने आपको कहा कि इसको रोकें क्योंकि इसने जवाब ही नहीं दिया, इररिलेवेंट गुफ्तगू शुरू कर दिया। अब ये कह रहे जी सुनने वाले फैसला करेंगे। और भाई सुनने वालों ने फैसला करना है तो फिर सुनने वालों को जाकर उनके घर सुनाते रहो, मेरे साथ क्यों गुफ्तगू कर रहे हो तुम? ये जिस तरह तुम्हारे म्यार हैं कुरान और हदीस के, उस तरह ही तुम्हारे मुनाजरे के भी म्यार हैं कि सुनने वाले फैसला करेंगे, सुनने वाले फैसला करेंगे। तो इन सवालों के जवाब किसने देने हैं? अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब के। ये सुनने वालों से लूँ मैं जवाब? सवाल आपसे किया है, जवाब जी सुनने वाले फैसला करेंगे। और सवाल का जवाब दोगे तो फैसला करेंगे ना, कि बगैर जवाब की फैसला कर दे रहे हैं। डिबेट से दस्तबरदार गालियां शुरू कर दी। टाइम लाओ जी, टाइम लाओ, जवाब दिए ना, टाइम लाओ। मैंने गालियां शुरू कर दी। जिस तरह राजपाल गालियां देता था, मैं गालियां देकर ओहो देखा मैंने अहमद रज़ा खान बरेलवी का जवाब दे दिया। देखा जिस तरह राजपाल ने नबी पाक से गालियां दी, मैंने आज सदूम लिखने वाले ने जिस तरह किया, जिस तरह वो रंगीला रसूल लिखने वाले ने किताबें लिखी, हमने गालियां देना शुरू कर दी तो देखा हमने जवाब दे दिया। ओहो देखो देखो हम कितने बहादुर लोग हैं। अगर इस तरह का जवाब देने तो जाकर शिया के सामने बात करके देखो ना 10 मिनट, जो राफजी अम्मा आयशा को एक मिनट भी बैठ के गाली सुन सकती है। और भी बात कर सके। अब ये बात ही नहीं शुरुआत कर दो, जवाब दिए ना। ताकि कोई और भी बात सारे कर बंदों सके। की बात सुन ली है, अब रुक जाए, अब रुक जाए। अब ये मछली मंडी ना बनाए सारे, हर बंदा उठ के अपनी बात शुरू कर दे, ऐसे नहीं चलेगा। रुकें, अब बात हो रही है जी। कानून साहब ने बोला है, अब फैसल भाई, जिया साहब, अमन, कौन बोलना चाहेगा? मैं थोड़ी सी अर्ज करना चाहता हूँ अलीम भाई, अगर आप इजाजत दें। और आप ये बोलना प्लीज चाहेंगे इनको भी, कानून साहब को रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे जी? मेरी बात तो सुन लें अलीम भाई। हाँ, बहुत शुक्रिया। जनाब, मैंने कहा अभी दोनों फ्रीकैन के साथ जो बातचीत उन्होंने हुई सब ने सुन ली। अभी लोगों का इसके ऊपर आपको तजिया ले लेना चाहिए था कि अभी तक जो गुफ्तगू हुई है उससे सारे अपने रवैयों का जो है ऊपर आके इजहार कर देते, ये ज्यादा अच्छा था। आपने फिर वही बंदा जो डिबेट वाला है उसको लाके दोबारा शुरू कर दिया, हालांकि वो बंदा खुद डिबेट के अंदर कह के गया कि मैं अब आगे बात नहीं करना चाहता। अभी वो बंदा दोबारा वही हवाले पेश करना चाह रहा है। ठीक है, तो अलीम भाई जिस वक्त शो टाइम था, जिस वक्त हवाले थे, पहली टाइम में उसने पेश किए, अगले ने जवाब में हवाले पेश किए, अगले ने जवाब के अंदर कोई एक लफ्ज गलत इस्तेमाल नहीं किया, अपनी तरफ से पेश नहीं किया। फिर जब इन हजरत की दोबारा बारी आई, इन्होंने इतनी गलत बात हजरत आयशा की तरफ मंसूब की कि इल्जाम लगाने वालों ने तो हजरत आयशा पे लगाया था, इसलिए हम उनको नौजुबिल्ला ऐसा समझ लें। बेशर्मी भूल गए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनके इस इल्जाम की तरदीद और उसकी गलत साबित कुरान की आयात पढ़ के बेच के किया है, लेकिन फिर भी इसको उसी वक्त पेश करके इस बात का जवाब देने की कोशिश की गई। आप खुद गवाह हैं इस चीज के, बल्कि आपने भी उनको रोका। ठीक है, उसके बाद ये माहौल जो खराब हुआ है, जो हुआ है, उस गुफ्तगू में भी एक लफ्ज गाली का नहीं आया। आप जिस लफ्ज के ऊपर इतराज कर रहे थे वो लफ्ज आप यकीन माने गाली है। आप उसको मयूब बात तो कह सकते हैं, बुरी बात तो कह सकते हैं, गाली तो नहीं थी, लेकिन उसके जवाब में फिर गालियां दी गई जो कि आपने सूरत सारा हुआ और अभी ये रोज दी जाएंगी। लेकिन अभी मेरी आपसे इस्तदा है, जो लोग आपके दोस्त हैं सारे, जिन्होंने 200 लोगों ने बैठ के ये बात सुनी है, उनको थोड़ा थोड़ा करके लाएं, उनसे तजिया सुने कि भाई इस डिस्कशन के बारे में आप क्या कहते हैं। और ये जो लोग आपको आगे बीच में डिक्टेशनें दे रहे हैं, आपको थ्रेट कर रहे हैं, इनकी परवाह ना करें। इनकी अपनी लाइफ के ऊपर इससे ज्यादा गंदी बातें होती हैं। यहाँ पर तो आपके पास इख्तियार है, जिसको आप चाहते हैं रोक देते हैं। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। तारंज साहब, आप अपना जी। तारंज साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि अलीम साहब, मैं तो फिर कहूँगा कि पावर आपके हाथ पे होनी चाहिए। आपके पास जितना कंट्रोल होगा आप कंट्रोल कर सकेंगे, वरना मछली बाजार होगा। जी जी, उसमें अब बात यह है, जहाँ तक ये डिबेट की अब तक बात है, देखिए दोनों जो फ्रीकैन हैं ये एक दूसरे के मिजाज को जानते हैं कि क्या है। कालो साहब ने पहला सवाल किया कि अहमद रजा बरेलवी साहब ने अहले हदीस या वहाबियों के खुदा के बारे में जो कहा है,
उसके बारे में बताएं। मरज़इयों के ताहर साहब, मरज़इयों के खुदा के बारे में कहा है। इसे चुप कराएं, खबरदार ये मेरी बात में बोला तो कबर प्रस्त मुर्दा प्रस्त बिल्कुल इजाजत नहीं होती। इस मुशरक को मेरी आवाज में आवाज मिलाने की कतई इजाजत नहीं होनी मेरी चाहिए। बात सुने, मैं अब मुझे थोड़ा सा मजीद सख्ती करनी पड़ेगी। ज़िया साहब अब मेहरबानी, इतने लोग यार हमें देख रहे हैं, सिर्फ अभी हम बात सुन लें तार अमजद साहब की तो क्या क्या मत आ जाएगी। अब फैसल भाई की बात में कोई बंदा बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। टोका है, आप ताहिर अमजद साहब को जानबूझ के आप उनको टीज करते हैं। जी ताहिर साहब। जी, मैंने ये कहा कि अगर अपने फैसला करना है या राय कायम करनी है तो कालू साहब ने एक सवाल उठाया है कि अहमद रजा साहब बरेलवी, जो कि बरेलवी मकतबा फ़िक्र के लिए एक मुजद्दद की हैसियत रखते हैं, एक हुज्जत की हैसियत रखते हैं, उनका मकाम है, उनका एक एलिगेशन है, संजीदा एलिगेशन है, जो अहले हदीस या वहाबियों के लिए कि खुदा के बारे में है कि वो खुदा का ये तसव्वुर रखते हैं और संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। तो क्या कालू साहब के इस सवाल को आमर नज़ीर साहब ने एड्रेस किया है? क्या इस बारे में कालू साहब ने जो इतराज उठाया है अहमद रजा बरेलवी साहब के बारे में, क्या उन्होंने उसको एड्रेस तक करने की कोशिश की है? तो मेरा ये है नहीं। उन्होंने क्यों नहीं किया? उन्होंने उसके जवाब में प्रूफ किस लिए? आपकी बारी है। फैसल भाई आप खामोश नहीं रह सकते। मेरी बारी में कोई ना बोले, मुझे अलीम साहब कहेंगे खामोश हो जाओ, मैं फौरन से पहले खामोश हो जाऊंगा, और मुझे उससे पहले किसी ने खामोश करने की कोशिश की तो उसकी ऐसी की तैसी। खबरदार, आप बोले, कोई बंदा नहीं बोलेगा, कोई बंदा नहीं बोलेगा। क्यों यार टोकते हैं बार बार? हाँ, तो बात यह है कि अगर बात करनी है और संजीदा गुफ्तगू चाहते हैं कि मुकालमा हो, तो फिर जिस तरह की संजीदगी के साथ आप सवाल का जवाब देंगे, आप जब मिर्ज़ा साहब या जमात अहमदिया के बारे में सवाल करेंगे तो उसका जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अगर जो मयार आमर नज़ीर साहब ने कायम किया है कि किसी उस सवाल को एड्रेस तक नहीं किया और इल्ज़ामी जवाब देकर आगे निकल गए हैं, तो यही हाल अहमदियों को चाहिए कि वो भी इसी तरह का रवैया इख्तियार करें कि थैंक अ मैन अकॉर्डिंग टू हिज रैंक। मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कोई इल्ज़ाम आए, कोई जवाब देने की कोशिश ही ना करें, उनको इसी तरह का जवाब दें। हाँ, इनमें अगर थोड़ी सी भी संजीदगी आ जाए, अगर ये अपने पर उठने वाले इतराज का जवाब जिस संजीदगी से दें, उससे ज्यादा देने की अहमदियों को जेनरस होने की या रियायती गुफ्तगू करने की जरूरत ही नहीं है, वो मुज़िर साबित होती है। इस तरह आमर नज़ीरियत या बाकी जो है वो मनफी प्रोपोगंडा जो है उसको रवाज मिलता है, उसकी हौसला अफजाई होती है, जो मेरे लिए भी किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। जो ये इल्ज़ाम करें उसे उसी तरह इनको लुटा देना चाहिए। दिस इज टाइम टू एक्सेप्ट ईच अदर एज दे आर एंड ट्रीट ईच अदर 100% इक्वली विद फुल लिबर्टी बट विद 100% इक्वल राइट्स। किसी के पास कोई इजारादारी नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब अली जी। ज़िया साहब अब आप बोलिए। जी ज़िया साहब माइक खोलिए, अब आप बोलिए। जी जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं जी आमर नज़ीर भाई को तो लगता है थोड़ा सा ज़्यादा ही आगे निकल गए हैं। रबवा स्टेशन पे उनको थोड़ी देर स्टे करना चाहिए था, को आधा पौना घंटा रबवे स्टेशन पे उधर बैठ के तबलीग करते, फिर तार साहब बड़े जो है ना खुश हो जाना था। इन्होंने बार बार कह रहे थे जी ये वहाबियत और मुल्लायत, तो मरज़इयत को क्या है? मरज़इयत को क्या कोई मसला है? मरज़इयत को या उसके जो है वो कान बह रहे हैं, कानों में से पीप निकल रही है, मरज़इयत नहीं बोला जा सकता। मरज़इयत बोलें, कादियानियत बोलें, दहरियत बोलें, इसको दजालियत बोलें, सारा कुछ बोल सकते हैं। आपको किसी ने पाबंद तो नहीं किया हुआ जनाब ताहर साहब। और दूसरी बात यह है कि बड़े इधर आके जनाब हाजी बन के तो मशवरे दे रहे हैं जी, वो ऐसे कर लेना चाहिए तो वो वैसे कर लेना चाहिए। हम कर लेते हैं, हमारे पास दोनों ही चीज़ें हैं, दलाइल भी हैं, डंडा भी है। अगर दलाइल से बात करनी है, इंसान के बच्चों की तरह सवाल जवाब करो। हम आपसे सवाल करते हैं, आपको कुरान हदीस पे किसी बात पे कोई इश्काल है, आप हमसे सवाल करें, हम आपसे करते हैं इंसानों की तरह। और आगे बात करने वाला भी इंसान ही हो। और अगर आपने इस तरह की हरकतें करनी तो डंडे हमारे पास भी बड़े हैं, बड़े तेज करके हमने तेल से लगा के रखे हुए हैं। पुलिस का जो 6 नंबर वाला छितर भी है वो वैसे ही फेरेंगे, फिर ऐसे ही चीखें निकल कर लो। अगर इंसानों की तरह करनी है बात तो आ जाओ। मैं 1 मिनट जी, मैं सवाल रखने लगा, आप मैंने बीच में बोला नहीं।
रुके, मैं बोल रहा हूँ ना अभी, जितना उन्होंने वो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वहाबियत और बरेलवियत के, उतने अल्फाज आप इस्तेमाल कर चुके। अब वो मैंने आपको टोका नहीं था कि वो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, आप भी मिर्जाइयत लफ्ज इस्तेमाल कर लें, इधर तक ठीक है। अब आप आगे बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। फिर हमारे दोस्त जो हैं हम भी इसी तरह आपको जवाब देंगे और फिर आपको भी बुरा लगेगा। सो मेहरबानी करके उतनी बात पहल की थी, अब मैंने पहल कर दिया, मेरी का वो जवाब दे लें। मैं सवाल रखने लगा हूँ एक बड़े महजब तरीके से, तो आपकी जमात में से कोई अगर इसका जवाब दे दे, कोई बदतमीजी नहीं है, कोई गाली गलोच नहीं है, कोई तमस्कुर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना कोई हाशिया रही है जी। बहुत ही पुरस्कून सा सवाल है। फरमाते हैं जिल्द 4 सवाल का जवाब आपने देना है अलीम भाई, सवाल का जवाब आपने देना है अलीम भाई। इसको खामोश करवाएं। नहीं कोई हाँ तो हमसे किसी से पूछा है कि सवाल का जवाब हमने देना है या नहीं, क्यों सवाल ले रहे हैं? अच्छा जी, कानून साहब, और भाई आपसे नहीं पूछा, मिर्जा साहब को हमने मानने वाला सवाल का जवाब नहीं देना, किसने किसी अहमदी ने सवाल का जवाब देना है? इसका माइक बंद कराएं जी, माइक बंद कराएं, मेरा टाइम चल रहा है अलीम साहब। मैंने रुके एक सेकंड कानून साहब, मैंने आपसे ये दरखास्त की है कि आपने जवाब देना है। नहीं अलीम भाई हमने देना ही नहीं है, पहले पूछ तो लें, किसी ने जवाब भी देना है इसके सवाल का। टोकना, जैसे मैं उनको कह रहा था कभी टोके नहीं, उनको बाद में कमल कर रहे हैं, जब उनका टाइम हो जाएगा मैं उनको रोक दूंगा। सवाल भी ना लें उनसे अलीम भाई, नहीं मैं तो नहीं, हमें सवाल लेने की क्या जरूरत है? मैं तो नहीं ले रहा, अब इनको टेबल पे रखने थे, मैं तो नहीं उठा रहा सवाल। जी जैसा बोलिए। जी जैसा माइक खोलिए और बोलिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अलीम साहब। सवाल बड़ा जो है वो क्या उसको कहते हैं मुहज़्ज़बाना है। आपके मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं, रूहानी खजान की जिल्द 4 सफ़ा नंबर 374 पे अपना एक इल्हाम लिख रहे हैं। फरमा रहे हैं, ता चहल साल ई बरादर मन दौर आन शाह सवार मी बैनम, यानी इस रोज़ से जो वो इमाम मुलहिम होकर अपने ताईं ज़ाहिर करेगा 40 बरस तक ज़िंदगी करेगा। अब वाज़े रहे कि ये आजिज़ अपनी उम्र के 40वें बरस में दावत हक़ के लिए बाइल्हाम ख़ास मामूर किया गया और बशारत दी गई कि 80 बरस तक या इसके करीब तेरी उम्र है। सो इस इल्हाम से 40 बरस तक दावत साबित होती है, जिनमें से 10 बरस बराबर गुज़र चुके हैं। ले जी, ये 1892 में मिर्ज़ा साहब ने किताब लिखी है और फरमा रहे हैं कि मुझे इल्हाम हुआ है, खुदा ने बताया है कि जनाब जिस दिन वो मुलहिम मामूर होगा, यानी अब मामूर होकर अपने तीन ज़ाहिर करेगा कि जी मैं खुदा की तरफ से आया हूँ, उस दिन से लेके 40 बरस तक उसकी उम्र होगी। 92 में मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं जी कि अब उन 40 में से 10 बरस कामल गुजर चुके हैं। इस हिसाब से मिर्ज़ा साहब को 1922 में फौत होना चाहिए था, वो 1908 में कैसे फौत हो गए, इसका मुझे जवाब दे दें जी। ठीक हो गया, आपकी बात होगी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अल्ताफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अल्ताफ साहब, आपका सवाल आ गया जी, दोस्त जवाब देना चाहेंगे तो देंगे। हाँ, आपका सवाल टेबल पे आ गया, मेहरबानी आपकी। जी बिल्कुल, अल्ताफ साहब मुझे वक्त दीजिएगा। आपने देना है जवाब ताहिर साहब? जी जी ताहिर भाई ठीक है, मुझे बाद में दीजिएगा। ताहिर भाई मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, बस 1 सेकंड, बस ज्यादा नहीं मैं टाइम लूंगा। मैंने आमन नज़ीर को जवाब देना है। कालू साहब ने एक पेज रखा, आमन नज़ीर साहब ने उसके मुकाबले में एक और पेज रख दिया, ठीक है। चलिए जी, हम जमात अहमदिया की तरफ से जो पेज आमन नज़ीर साहब ने रखा है, हम उसके लिखने वाले पर लानत भेजते हैं, उसके मुंह पर लानत भेजते हैं। आमन नज़ीर साहब आप आए, आपने जो कालू साहब ने आपका पेज रखा था ना, अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब का, जिसने लिखा है कि वहाबियों का जो खुदा है वो लवातत करवाता है और इस तरह के पूरा फतवा है, आप उस पर लानत भेज दें, बात खत्म होती है, ठीक है ना। हमने जो पेज आपने पेश किया था उस पर हमने लानत भेज दी। चलिए मेरी बात ही आपने मुका दी है, आपने बात ही खत्म कर दी है। अमन नज़ीर साहब तो मेरे ख्याल में मौजूद हैं जी, तो मैं जवाब दे देता हूँ जी। अमन नज़ीर भाई बिजी है, मैं जवाब दे देता हूँ जी। बारी मेरी है। चलो अभी कुछ कहना चाहते हैं, इसके बाद आप जवाब दीजिए। ताहिर अमजद साहब, ठीक है। बिल्कुल मैं ताहिर साहब माजरत। जी जी, नहीं कोई बात नहीं। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह 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 हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामल ग़ुलाम और उसी सिराज मुनीर के नूर से मुनव्वर 14वीं का चांद हमें नसीब हुआ।
کہ नूर खैरुल बशर से जो रोशन हुआ, शुक्र है वो महताब हमको मिला, गैर से मांगते रह गए जो दिया, उनकी किस्मत में अब तक उजाला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें वक्त के इमाम को पहचानने की तौफीक मिली, और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुछ कहा, जैसे कहा, जिनके पास चश्मे बसारत और बसीरत है, उन्होंने उनको पहचान लिया और उनके आफियत के हिसार में मौजूद हैं कि आपने फरमाया कि सिद्क से मेरी तरफ आओ, इसी में खैर हैं दरिंदे हर तरफ, मैं आफियत का हूँ इसार। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस आफियत के हिसार में आने वाले मुतमईन भी हैं, उनके दिमाग रोशन हैं, उनके दिल मुतमईन हैं और उनकी रूहें मुअत्तर हैं। अलबत्ता जो चश्मे बसारत और बसीरत से महरूम हैं वो तो सिराज मुनीर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से भी अपने आप को महरूम हुए कि उन्होंने आंखों पर पट्टियां बांध रखी थीं और हसद, बुग़ज़ और कीने के शरारों में जल जल कर राख हुआ चाहते थे। सुम्मुम बुकमुन उम्युन की तरह उनकी आंखें नहीं हैं कि देख सकें, उनके कान नहीं हैं जो सुन सके, उनकी ज़ुबान नहीं है जो हक बोल सके। हम यही कहेंगे कि ई सआदत बज़ोर बाजू नीस्त। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जानने वाले, मानने वाले बहुत मुतमईन हैं कि उनकी पेशगोइयाँ अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल ताला बिल्कुल पूरी हुई। अलबत्ता हासदीन का ये हक तस्लीम किया जाता है तो वो बेशक हसद के शरारों में जल जल कर राख हो जाएं। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा ताराम जैसा, मजा आ गया। अच्छा अल्ताफ साहब आप बात रिपीट कर दें कि बात का वो सलसल जरा कायम रहे और फिर उसी तरह जवाब आए, लोग भी सुन लें, कुछ लोग बाद में आते हैं। अब अल्ताफ साहब अपनी बात दोहराइएगा, फिर मैं आगे निकलता हूँ। जी, सबसे पहले तो मैं ये ज़िया-उल-सूल से कहूंगा कि ज़िया-उल-सूल का सवाल तुमसे नहीं था क्योंकि तुम तो अहमद रज़ा खान बरेलवी को मानने वाले हो। मैं तो आगे ठीक है ना। मेरा मसला ये था कि जब मैंने ज्वाइन की थी मैं आमन नज़ीर भाई की जगह मैं जवाब दूंगा। नहीं, तुम क्यों नहीं जवाब नहीं दोगे? नहीं, मैं ज़िया साहब आप रुकिएगा, ज़िया साहब आप अब मैं बोलेंगे तुम्हारी बीच में। बात का जवाब देने लगा हूँ। ज़िया-उल-सूल, मैं तुम्हारी बात का अल्ताफ साहब जवाब आप अपनी बात करें, आमन नज़ीर साहब तशरीफ लाए हैं, वो बात करेंगे, आपको रिस्पॉन्ड अलीम भाई एक मिनट, मुझे अब इसकी बात का भी जवाब देने। ज़िया-उल-सूल की तुमने मुस्लिम सल्लम का एक इल्हाम पेश किया, तुमने कहा उसके हिसाब से इतनी मौत नहीं चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग की खुदाई में, हदीस मेरे पास मौजूद नहीं है लेकिन मैं आपको मफहूम बताता हूँ। खुदा तो मैं यहाँ पे हदीस मांगूंगा, हदीस अगर है तो बात करना, हदीस के बगैर बात ना करना। नहीं तो मैंने मिर्जा साहब तुमने वाला लगाया था ज़िया साहब, अगर आप बोले शर्म करो। तो मुझे मादल के साथ आपको थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए रेस्ट करना पड़ेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदाल मारी और कहा कि मेरे हाथ में फारस की कुनिया रखी गई। अब उस हिसाब से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में फारस की कुनिया रखती दिखाओ तुम मुझे। अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो दिखाओ मुझे। मैं वहां ना तला तू ठीक है। नहीं अल्ताफ भाई, इनसे वो अपना सवाल जो आपका पहला था वो दोहरा दें। कालू साहब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, अब ना मेरे ख्याल में अब कोई बंदा बोल रहा तो मुझे मजबूरन नीचे उतारना पड़ेगा। अल्ताफ साहब अपना पहली बात भी अब दोबारा दोहराते हैं, नए लोग आए हैं वो लोग भी सुन लें, हम भी दोबारा सुन लें और फिर हम आमन नज़ीर साहब की तरफ जाते हैं आपकी पहली बात लेके। जी बिल्कुल, मैं पहली बात दोहराता हूँ। आमन नज़ीर साहब, कालू साहब ने एक पेज रखा आपके सामने, अहमद रजा खान बरेलवी साहब जो मुजद्दिद हैं बरेलवियत के, उन्होंने एक पेज रखा कि उन्होंने लिखा है, उसके अंदर फतवा दिया है कि जो सनाउल्लाह मुरतसरी का खुदा है, सुन लिया मैंने सनाउल्लाह मुरतसरी का वहाबियों का जो खुदा है, ठीक है, सुन लिया, वो जो है वो लवातत करवाता है, उसको पहाड़ी सुन आगे सुने। आपने उसके मुकाबले में आपने वो पेश किया जिसमें वो जो काजी यार मोहम्मद का कोई हवाला आपने पेश किया। मैंने सब दोस्तों के सामने यहाँ पे उस हवाले पर जिसने वो लिखा है उसको बगैरत कहा, उसको कहा वो बेशर्म था, वो बेगैरत था उसने जिसने लिखा, और उस पर हम लानत भेजते हैं। अब आप भी अगर हिम्मत है, अगर आप एक बाप की औलाद हैं तो आप भी ये हिम्मत करें और अहमद रजा खान बरेलवी पर वो लानत। अपने अल्ताफ साहब अल्फाज का चुनाव थोड़ा ठीक रखेंगे, आपका बात आ गया। अल्फाज वापस लुटाऊंगा, उन्होंने बोल दिए हैं, हौसला रखिए अलीम साहब, नहीं वो इंसाफ करें वरना हम आपकी बात का भी बाइकआउट कर देंगे। नहीं रुकिएगा, अगर आपने जानिबदारी की तो जिस तरह कल साहब अलीम भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जो मर्जी करते नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इनसे पिछले 20 साल से अल्ताफ साहब महफिल के लिए बेहतर है कि आपने वो कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं माजरत कर लेता हूँ। अल्फाज वापस ले ली है, आप भी उसी तरह बात करेंगे जिस तरह अल्ताफ साहब ने बात की है। जी ठीक है,
ٹھیک ہو گیا. اچھا بھی الطاف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اس بندے پر لعنت بھیج دی ہے جس نے وہ اسلامی قربانی لکھی ہے، حالانکہ وہ اسلامی قربانی لکھنے والا وہ بندہ ہے جس کے بارے میں مرزا صاحب نے خطبہ الہامیہ میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی وہ صحابہ رسول اللہ میں داخل ہو گیا ہے. وہ قاضی یار محمد ہے جس نے مرزا صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی، اور کہتے ہیں کہ ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں. اگر آپ اس پر لعنت بھیجتے ہیں تو جس نے یہ کہا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرنے والا صحابہ رسول اللہ میں داخل ہوگا اس پر بھی لعنت بھیجیں. پکا ہی کام مکاؤ، ایک باری جان چھڑاؤ. ویکھو علیم بھائی نے پھر خباست کیتی ہے نا، انہوں کہا اپنی زبان تے لگام دے. بیچ میں نہ بولے، بیچ میں نہ بولے. تم غلط چل رہے ہو، تم غلط. علیم بھائی ایدی زبان جیڑی میں دے منہ چ کھچ لینی ہے، ایدی زبان میں دے منہ چ کھچ لینی ہے. اب میری بات ایک سیکنڈ رکے، ایک سیکنڈ رکے. ابھی جب بندے نے یہ اگر اپنے پیو رہے تو یہ گل میرے سامنے آ کے کھلو کے کہے، جب میں دی زبان ٹھڈ تھانی بھی ہاتھ پا لینا نا کھچنا تے آکھی میری شلوار کلی کر کے دوڑے ہیں، غیرت ہوے تے ڈب کے مر جا. ایک منٹ تو پہلے امرجیت صاحب ایک منٹ خاموشی اختیار کیجیے. آپ ایک سیکنڈ خاموشی اختیار کیجیے. کالو بھائی غصہ نہیں کرنا بالکل بھی. ایک منٹ سے آپ خاموشی اختیار کیجیے. دیکھیں تبلیغ جو ہوتی ہے نا بڑے، اب آپ بات کریں گے، مجھے بات کرنے دیں. وہ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں جن کی شلواریں ہم روز گیتی کر کے یہاں سے بھگاتے ہیں. امرجیت صاحب ایسی بات نہیں کرتے. صاحب اگر آپ اخلاق سے بات کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یار بات کریں گے الطاف صاحب اور آپ بات کریں گے، ہم لوگ خاموش رہیں گے. اور میں نے یہ کہا ہے کہ لوجیکل بات ہے کہ جو بندہ مرزا صاحب کا جا کر جسم ٹٹولتا تھا، سیرت المہدی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب مرزا صاحب نماز پڑھتے تھے تو وہ پیچھے سے آ کے ان کا جسم ٹٹولتا تھا، پھر مرزا صاحب اندر ایک کوٹڑی میں جا کے نماز پڑھتے تھے اس کی وجہ سے. بالکل بالکل حوالہ ہے، کہیں تو اسکین لگا دیتے جسم ٹٹولتا تھا مرزا صاحب. اس کو بات کرنے دے پوری، یہ زانی کو بات کرنے دے پوری، کوئی بات نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ بندہ جو مرزا صاحب کا جسم ٹٹولتا تھا نازیبہ انداز سے، بےہودہ انداز سے، اور اس کی ڈر کی وجہ سے مرزا صاحب جا کر کوٹڑی میں نماز پڑھنے لگ پڑے کہ یہ آتا ہے جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو میرے جسم کے بعض حصوں پر آ کر ایسے ہاتھ چپا لاتا ہے. تو مرزا صاحب نے جب اس کو چھوڑ کر اندر جا کے کوٹڑی میں نماز پڑھنا شروع کر دی، وہ اتنا مرزا صاحب کا عزیز مہربان تھا کہ مرزا صاحب نے اس کو بھیجا تھا ٹانک وائن منگوانے کے لیے. کہیں تو میں خط پیش کر دیتا ہوں کہ یہ یار محمد ہے، اس کے ہاتھ ٹانک وائن شراب بھیج دینا. یہ وہ یار محمد ہے، اس نے مرزا صاحب کے ہاتھ پر بیعت کیا، اور مرزا صاحب کہتے ہیں جس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی وہ صحابہ رسول اللہ میں داخل ہو گیا. آپ کہتے ہیں اس پر لعنت، میں کہتا ہوں اس پر لعنت کیوں بھیجتے ہو؟ اس پر لعنت بھیجو جس نے کہا ہے کہ یہ صحابہ رسول اللہ میں داخل ہو گیا. بات مکمل ہوگی. جی الطاف صاحب آپ آئیے. میں نے عامر نذیر، میں نے تو یار محمد کا نام ہی لیا. میں نے کہا وہ جو کتاب تمہارے ہاتھ میں اسلامی ٹیکسٹ بنے کا جو صفحہ تمہارے ہاتھ میں ہے وہ جس نے لکھا ہے وہ بغیرت ہے، اس کے منہ پر لعنت ہے. تم کہہ رہے ہو کہ جو صفحہ ہم پیش کر رہے ہیں جس نے وہ لکھا ہے اس، چل احمد رضا خان بریلوی کی چھوڑ دے، اس میں سے جس نے وہ لکھا ہے وہ کتی کا بچہ ہے. لکھ یہاں پہ، بول یہاں پہ بغیرت. سن لینا جی الفاظ صاحب، مجھے بیان نہیں کرنا. الطاف صاحب رکیے گا. الطاف صاحب ہم وہ بات الفاظ استعمال کریں جو وہ بھی کر سکیں. تو اب میں دوبارہ چاہوں گا کہ آپ اپنے یہ الفاظ یہ صرف لوگوں کے لیے اس طرح کے الفاظ کرنا جانتے ہیں، اپنے لیے نہیں برداشت کر سکتے. اچھا یہ میری لاسٹ ٹائم ہے، اب نہیں میں وہ دوبارہ لفظ استعمال کروں گا، لیکن اس پہ لعنت بھیجنی ہے جس نے یہ لکھا ہے کہ جی ایک سیکنڈ میں بھائیوں سے گزارش کرنی چاہتا ہوں، مجھے بات کرنے دیں گے. ٹھیک ہے، ون ٹو ون بات جواب نہیں دے گا. علیم صاحب میں جواب دیتا ہوں. جواب نہیں دے گا. خاموش ہو جائیں باقی بندے، خاموش ہو جائیں. بات ہو گئی الطاف صاحب، آپ کی بات مکمل ہو گئی الطاف صاحب؟ جی کرنے دے اس کو بات. ٹھیک ہے. اچھا الفاظ کا چناؤ دونوں دوستوں نے اتنا رکھنا ہے کہ جو ہم ایک دوسرے کے لیے استعمال کر سکیں. الطاف صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے. جی الطاف صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ الفاظ اپنے واپس لے لیے ہیں. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں ایک سیکنڈ کے لیے بات کرنے کی اجازت چاہوں گا. جی ڈاکٹر صاحب آ رہی ہے آواز آپ کی. میں نے صرف یہ عرض کرنی ہے کہ ہمارے یہاں پر الطاف بھائی بھی تشریف لائے ہیں. I'm a big fan of him. اور یہ کہ منجھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. But I need to tell him کہ there are very very firm instructions from Huzur Anwar Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz after all the incidents 4 years ago, 5 years ago and then recently as well کہ یہ تبلیغ ہے بڑے صبر اور ہمت اور بڑے برداشت کا کام.
जिसमें बर्दाश्त और सब्र और हिम्मत है, जो कि है अल्लाह के फजल से, तो वो लोग यहाँ पे इस जगह में, इस जलती जगह पर पैर रखें। अदरवाइज़ जो है वो इससे फिर ये होगा कि जो बात आप कहेंगे वो आप उनके झूठे खुदाओं को कह रहे होंगे, झूठे उनके उलमाओं को कह रहे होंगे, मगर वो हमारे सच्चे को बुरा कहेंगे। तो इसलिए हमने बहुत एहतियात करनी है। डॉक्टर साहब बहुत खूब, अल्ताफ साहब बहुत बहुत अच्छे नाइस बंदे हैं। अल्ताफ साहब नहीं, आपको मुझे अल्ताफ भाई का तारुफ कराने की जरूरत नहीं है। मैं अल्ताफ भाई को अच्छा और नाइस नहीं, ही इज अ मार्वलस मैन, आई लव हिम। जबरदस्त। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आप आएंगे, कल मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। एक मिनट, कल भाई आप गुजारिश बाद में करें। आप मेरे लिए बच्चों की तरह हैं। मेरी सिंपल सी रिक्वेस्ट आपसे ये है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, बर्दाश्त के साथ बैठें। मज़ा तब आता है जिसके पास दलील की ताकत होती है, उसकी जो वकार और मतानत है ना, वही दुश्मन के पैर से ज़मीन निकाल देती है। ये बाकी लोग चीखें धाड़ें जो मर्जी करें, ये आपके पैर से ज़मीन कैसे निकाल सकते हैं जबकि आप दलील के मैदान के शह सवार हैं। तो इसलिए हिम्मत करें। बिस्मिल्लाह। मैं आपसे गुजारिश मुझे करना बात चाह करने रहा देंगे था। नहीं सर, आप ये आगे- आप नहीं करेंगे एक बंदा बात। आपका बोले, एक हमारा तैयारी बोले, करने का चाहते हैं। जी अमर डॉक्टर साहब आप आगे हैं, बहुत ये शुक्रिया, तैयारी जज़ाकल्लाह, आप आए आते हैं, आपस में मशवरे मैं आपसे ये कहना चाह रहा था। अमन साहब रुके, सुन ले बात उनकी, रुके जी। आप आए हैं, रुके जरा। तीसरा बंदा है आपकी पार्टी का जो आप बोल रहा है। कंट्रोल कोई करें। मैं देता हूँ मौका आपको जी। कालू साहब बोले। डॉक्टर साहब आप कंट्रोल करें। देखें, बात बहुत ज़्यादा जो है ना ख़राब हो रही है, और जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं ना, उस तरीके से इनको नहीं पता कि बात कहाँ तक जाएगी। ये तो करते जा रहे हैं, लेकिन जाने इनको दें, अंदाज़ा नहीं है ये बात जाने नहीं दें। करते। आपके साथ अल्ताफ भाई बैठे हुए हैं, उनको पता है बात कहाँ जाएगी, आप वो कंट्रोल जाने करें, दें। मैं नहीं, सुन तो लेना, मैं कंट्रोल आपको के कहना लिए क्या चाह अलीम रहा साहब हूँ। बहुत मंझे हुए हैं। मैं अभी हाजिर हुआ हूँ, अभी क्लिनिक मैंने बंद भी नहीं की, क्लिनिक से ही बात कर रहा हूँ। मैंने अभी क्या कहते हैं ना, अपने आप को वो टैडी भी नहीं किया जो क्लिनिक के बाद डॉक्टर्स करते हैं। तो आप गुफ्तगू करें, मैं हाजिर हूँ, मैं देख रहा हूँ। टेंशन ना लें। मुझे बात करने देंगे, मशवरा अलीम भाई बहुत माशाल्लाह, ही इज डूइंग है। ग्रेट जॉब। अलीम भाई इज डूइंग ग्रेट जॉब। और अल्ताफ भाई जो बैठे हुए हैं, आप डोंट यू वरी, यू कैन, आप, मेरा ख्याल है आपको चूंकि अल्ताफ भाई का पता नहीं है, इसलिए आप परेशान ना हो, ठीक है। यू गाइस गो अलोंग, और अल्लाह के फजल करम से 2 घोड़े इनके 70 आते हैं मारने के काफी हैं, टेंशन ना लें। बिस्मिल्लाह करें, चले मैं बैठा हूँ। जी अल्ताफ भाई प्लीज, जज़ाकल्लाह, वेलकम अच्छा, वेलकम बैक अगेन अल्ताफ तीन बंदों ने भाई। बात की है, आप मुझे बोलने दें, आप कोई ना बीच में बोले। और अहमद रजा खान बरेलवी का जवाब दो। बहुत सब्र कर इसको नीचे उतार दें, अभी महफिल खराब। आमिर भाई की बात अच्छा बोलता हुआ एक सेकंड कर देते हैं आप। रुकिएगा। अब मैं कुछ दोस्तों को नीचे भेज रहा हूँ कि जो बंदे बार बार बीच में बात टोक रहे हैं, ऐसे बात नहीं होगी जी। अमन साहब मेरी बात के बीच में बोलता हुआ माइक मेरा म्यूट कर देते हैं आप बोलिए। अब जो बंदा माइक खोलेगा वो 5 मिनट के लिए नीचे जाएगा। चोराना कुत्ती घड़ी है। मेरी बात सुने, मैं ये अर्ज कर रहा था अलीम साहब, गुजारिश ये है कि ये जो अल्ताफ साहब कहते हैं कि भाई जो कुछ अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने किसी और फिरके के बारे में, किसी मकतबा फिक्र के बारे में लिखा है, तुम उन पे लानत भेजो। भाई देखें, आपने अपने घर का फैसला आप किया ना, आपने काजी यार मोहम्मद पर लानत भेज दी। मैंने अपने घर का फैसला आप करना है, मैंने लानत भेजनी है कि नहीं भेजनी। मेरी नजर में उलमाए इस्लाम एक इज्तिहादी फतवा देते हैं, कई दफा इज्तिहाद गलत होता है, कई दफा सही होता है। अगर सही है तो 2 सवाब है, गलत है तो 11 सवाब है। फतवा एक राय है और इज्तिहाद होता है। मैंने अपनी मर्जी से फैसला करना है, आपके हुक्म के मुताबिक नहीं मैंने फैसला करना। मेरी मर्जी है, मैं क्या करूंगा। मैं ये समझता हूं उन्होंने इज्तिहाद किया, सही है या गलत है उनका मामला अल्लाह के साथ है। आपने तो अपने घर का फैसला करके मुझे बता दिया कि आपने काजी यार पर लानत भेज दी। वो काजी यार जो मिर्जा साहब का ऐसा मुरीद था, जिसके हाथ मिर्जा साहब टॉनिक वाइन मंगवाया करते थे, खत में मौजूद है, लिखा हुआ है। वो काजी यार जो मिर्जा साहब के जिस्म को टटोलता था जब मिर्जा साहब नमाज पढ़ने सजदे में जाया करते थे। इसके डर की वजह से मिर्जा साहब जाके कोठड़ी में नमाज पढ़ने लग पड़े कि ये काजी यार करूँ किए मेरे नाल। ये वही काजी यार है जिसने बताया है कि मिर्जा साहब फरमाया करते थे कि खुदा के साथ, यानी ये लाश के साथ मेरा एक निहानी तल्लक है। निहानी तल्लक समझते हैं? और इसका इजहार भी उन्होंने बताया कि इस तरह से इजहार किया रजूलियत का उसने हमारे मिर्जा साहब के साथ। ये काजी यार के अल्फाज हैं, किसी और बंदे के अल्फाज नहीं है। अगर आप काजी यार पर लानत डालना चाहते हैं तो उस पर लानत डालें जो कहता है ये सहाबे रसूलुल्लाह में दाखिल हो गया। आप खामखा काजी यार पर लानत डालें, वो बेचारा। बहुत शुक्रिया जी। अल्ताफ साहब अब आप बोले, आपकी बात पे टोकेगा नहीं। तुमने ये झूठ बोला है, तुमने ये सरिया झूठ बोला। मैंने किसी का नाम लिया, मैंने कहा वो जो किताबचा तुम्हारे पास है ना, उसके लिखने वाले पे लानत है, क्योंकि वो किताबचा तुमको पता है कि तुम लोगों ने लिखवाया हुआ है, वो पता है तुम लोगों को, हम लोगों ने साबित किया हुआ है व्हाट्सएप पे, और तुम जानते इस बात को। तुमने ये सरिया झूठ बोला है कि मैंने किसी का नाम लिया है, ठीक है ना। नंबर 1।
नंबर 2, अच्छा जब अपने अपने बुजुर्गों पे या जब वो लिख रहा है तुम्हारा, इसका मतलब है कि उसने लिखा है कि तुम्हारा खुदा जो है वो लवातत करवाता है, यानी कि वाबियों का फिरका नहीं, साफ लिखा है वाबियों का, यानी कि जो क्या नाम है मोहम्मद हसन बटालवी और सनाउल्लाह अमृतसरी का जो फिरका था, उनका जो खुदा है वो लवातत करवाता है, वो लूती है उसको तुम जस्टिफाई कर रहे हो। ये तमाम दोस्त यहाँ पे 200 बंदे सुन रहे हैं कि उसको ये जस्टिफाई कर रहा है। ये है तुम्हारा मुजाहिद, ये है जो अपने खुदा को लवातत कह के उसको भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। सुभान अल्लाह। आ जाओ अमृत। मौका देंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। मौका देने दें। 1 मिनट में बात की है अल्ताफ साहब ने भी, आप भी जवाब दें। उतना ही टाइम मुझे भी दो जितना टाइम ये ले रहे हैं। असल बात ये है, असल बात ये है कि हमारे तो एक मुखालिफ आलम दीन ने अपने किसी मुखालिफ आलम दीन की कोई अदब चदी बात पढ़ी होगी, उनको पसंद नहीं आई होगी, उन्होंने इल्जामी तौर पर इस तरह के अल्फाज कह दिए। आपका तो अपना मुरीद है, मिर्जा साहब का हाथ पर बैत करने वाला है काजी यार मोहम्मद, और ये किताबचा हमने नहीं छुपवाया, ये काजी यार मोहम्मद की लिखी हुई किताब है। और इस नेहानी तल्लक को तो आपके मिर्जा साहब खुद भी मानते हैं। इस नेहानी तल्लक को और बंदा कोई नहीं, ये खुद आपके मिर्जा साहब और उनके मुरीदों की बातें हैं, जो उन्होंने सीरतुल मादी में भी लिखा हुआ है कि काजी यार मोहम्मद ये इस तरह की वो नेहानी तल्लकात को जाहिर करता था और बताता था कि हमारे मसीह मऊद का ये लाश के साथ ये तल्लक है। अगर आप किसी ऐसे खुदा को मानते हैं, आप मिर्जाई ऐसे खुदा को मानते हैं जिसका मिर्जा साहब के साथ वो नेहानी तल्लक था कि उसने मिर्जा साहब के साथ रजूलियत का इजहार फरमाया और मिर्जा साहब ऐसे कांप रहे थे जैसे औरतें नहीं होती उस हालत में, उस कैफियत में, तो वो कहते बिल्कुल वही कैफियत है मिर्जा साहब पर तारी। अगर आप किसी ऐसे खुदा को मानते हैं तो उसको छोड़ के इस्लाम कबूल कर लें, मुसलमानों के खुदा को मान लें। ये लाश ये 2 नंबरी क्या करता था आपके मिर्जा साहब के साथ। एक मिनट मुझे, हाँ जी, मैंने कहा है, इसमें भी हम बहस कर लेंगे। देखो हमने व्हाट्सएप पे भी साबित किया था कि ये रिसाला जो है ये खत्म नबूवत के मौलवियों ने लिखवाया हुआ है। बहरहाल इसमें भी बहस कर लेंगे, इसके ऊपर दोबारा डिबेट करेंगे। लेकिन मैंने जो किताब जा तुमने हाथ में मुझे दिया है ना, मैंने उसके ऊपर लानत भेज दी है, ठीक है। तुम्हारे में हिम्मत नहीं पड़ी, तुम उसको जस्टिफाई कर रहे हो। ये तुम्हारे अपने बंदे यहाँ पे सुन रहे हैं कि तुम उसको जस्टिफाई कर रहे हो कि उसने कहा है, अगर अहमद रजा खान बरेलवी ने ठीक ही कहा होगा उसने कि हाँ वहाबियों का खुदा जो है वो लवातत करवाता है, वो अद्धा सवाब उन्हें ले लिया कह के तुमने ये जस्टिफाई किया है। ये लोग तुम्हारे सुन रहे हैं, कोई शर्म नहीं आई तुमको ये कहते हुए। चलो मनोदीपारी दो जी। अच्छा जी, बात ये है कि ये कहते हैं कि मैंने तो ये काम किया है, मैंने तो लानत डाली है, लेकिन कहते हैं मैंने उस किताबचे के लिखने वाले पर लानत डाली है। आप साबित करते हैं ये किताबचा किसी और ने लिखा है, ये काजी यार का लिखा हुआ किताबचा, वो स्कैन नीचे लगा हुआ फैसल भाई ने लगाया, इसको बड़ी स्क्रीन पे करके लोगों को दिखा दें। ये मिर्जा साहब के मुरीद ने लिखा हुआ है। रही बात ये कि हम क्यों इस तरह का फैसला करते हैं और आप क्यों इस तरह का फैसला करते हैं, हम अपने उलमा के बारे में क्यों नरमी से बात करते हैं और कहीं क्यों बुर्दबारी का मुजाहरा करते हैं, और आप अपने मिर्जा साहब के मुरीद पर क्यों लानते डालने लग पड़ते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रिसाला अशात उसमें अहले हदीस अमृतसर में लिखा करते थे, रसूल कादियानी की रसालत जहालत है, जहालत है, जहालत। ये आप लोगों की जहालत है कि आप अपने मिर्जा साहब के जिनको आपने नबी माना है वो उनके सहाबी पर लानत डाल रहे हैं, और वो मिर्जा साहब कहते थे ये साहब रसूलुल्लाह में दाखिल हो गया। बेड़ा आपका घर कोई आपकी जहालत की वजह से। हकीकत ये है कि आप भी इस तरह का सुलझा हुआ जवाब दे सकते थे, लेकिन आप में बर्दाश्त नहीं है, आप फटोफट लानते डाले, मिर्जा साहब के सहाबी पर लानते डालने लग पड़े। ओ भाई, मिर्जा साहब का वो फेवरेट साहबी था, मिर्जा साहब की कई जरूरतें पूरी करता था। आगे जी बात आप जी साहब जो सुलझा हुआ जवाब है ना, वो आप अपने आप को जस्टिफाई, क्योंकि आपने वो पैसे लेने हैं बरेलवियों से भी और अपने वाबियों से भी, इसलिए आप जस्टिफाई कर रहे हैं। हम जस्टिफाई नहीं करते, जो गलत बात है उसको हम गलत बोलते हैं, मुंह पे ऊपर अलाल ऐलान बोलते हैं जो गलत बात है। और जो सनाउल्लाह मसीह ने ये भी कहा था कि जनाब आखिरी फैसला मुबाइला होता है, फिर उससे भाग गया था, ये भी कहा था ना उसने कि आखिरी फैसला, उसको भी तुम डिनाई कर देते कि नहीं, ये बात भी गलत है, ठीक है। अब इस बात को छोड़ दो, मैंने कहा है कि जो किताबचा तुम्हारे हाथ में है उसके ऊपर हम लानत भेजते हैं। अगर तुम कहते हो कि हमने मुरीद, तो अब्दुल्ला बिन अबी सुलैल भी तो अब्दुल्ला बिन अबी सलूल भी तो सहाबी था ना, उसका तो जनाजा भी पड़ा था। फिर उसका क्या जवाब दोगे तुम? फिर उसको कहोगे जी वो कुरान में उनकी आ गई थी, दिखाओ कहाँ आई है। कुछ शर्म होती है, कोई आती है? जस्टिफाई कर रहे हो, अपने खुदा को भी लूटी मार रहे हो और फिर जस्टिफाई भी कर रहे हो, कोई शर्म यहाँ नहीं है तुम्हें। ये मानने वाले सुन रहे हैं कि क्या कर रहे हो तुम।
अच्छा, मैं ये फिर कहता हूँ कि अलीम साहब इनको जरा समझा के रखें, जो लफ्ज ये बोलेंगे मैं वही इनकी तरफ लौटाऊंगा। शर्म की तो आप पर, शर्म की तो आपको जरूरत बोलने है। दे मुझे। दोनों दोस्त जो हैं वो बड़े मैच्योर हैं, और दोनों दोस्तों में बर्दाश्त भी है और उम्र के गुस्से में है कि वो समझते हैं क्या बात करनी है। मैं दोनों से गुजारिश करूंगा, अल्फाज का इस्तेमाल, अल्फाज का चुनाव मुहज्जब से मुहज्जब रखें, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो भी सुन सके, आपको भी बुरा ना लगे। जी अलीम साहब, हमने तो पहले भी वही अल्फाज लुटाए हैं जो इन्होंने हमारे बारे में इस्तेमाल किए हैं। जो फतवा इन्होंने पढ़ा उसी तरह का हमने इनके घर से पढ़ दिया। जो अल्फाज ये बोल रहे हैं शर्म और बेशर्मी के, मैं भी कहता हूँ कि शर्म की तो आपको जरूरत है कि आप उस बंदे पर लानत भेज रहे हैं जो आपके मिर्जा साहब का सहाबी है, और मिर्जा साहब की कई वो जरूरतें पूरी किया करता था। कई जरूरतें ऐसी हैं जो निहानी तल्लुक से रखती हैं, वो आपको बयान करने के काबिल नहीं है। वो आपको बता तो दिया उसने, उनके सीरतुल मादी में भी लिखा हुआ है कि वो इस तरह भी जरूरतें पूरी किया करता था कि जब मिर्जा साहब उधर नमाज पढ़ते हुए सजदे में जाते थे तो वो पीछे से सफे फलांगता हुआ आगे आ जाता था काजी यार मोहम्मद, और आकर इनकी जरूरतें पूरी करता था। तो आप उस बंदे पर लानत भेज रहे हैं, किताबचे पर नहीं लानत भेज रहे, किताबचा लिखने वाले पर लानत भेज रहे हैं, और वो आपके मिर्जा साहब का मुरीद है, साहबी है, आप उस पर लानत भेज रहे हैं। तो मैंने कहा उसी पर डायरेक्ट लानत भेजो जिसने इसको साहबी बनाया और कहा कि साहब रसूलुल्लाह में ये दाखिल हो गया मेरे हाथ पर बैठ करके। उस पर क्यों नहीं कहते ने बुरा ना मारो, बुरे दी मां नू मारो, ताकि नवा ना बुरा जमता रहे। सीधा उधर ही बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। अल्ताफ साहब जी, अल्ताफ भाई आप हैं यहाँ पे? नहीं जी, उनका रफा हो गया है तो नहीं तो अपना मुझे वक्त दीजिए, आप लोग कहेंगे बीच में। साहब जी जी, बार बार बात हो रही है कि कालू साहब का पहला सवाल था कि अहमद रजा बरेलवी साहब ने वहाबियों के खुदा के बारे में जो इल्ज़ाम लगाया है, जो राय दी है, उसके बारे में इनसे राय तलब की गई, और इनका ये हालत है कि फंस गई जान शिकंजे अंदर, ज्यों वेलन विच गन्ना, रो नू को हुण रवे मोहम्मद, हुण जे रवे ते मन्ना। और ये हैं कि इधर उधर की बातें की जा रहे हैं, और साफ जाहिर होता है कि ये मुद्दा है कि आए न मुद्दा की तरफ, सुना रहे हैं वो किस्से इधर उधर के मुझे। ये जनाब बात बता रहे हैं काजी यार मोहम्मद साहब की, जो कि तारीखी तौर पर हमें पता है कि उनकी जहनी कैफियत कैसी थी और कैसे नहीं थी, लेकिन उसको ये मुकाबल पर ला रहे हैं वहाबियों के खुदा के मुकाबल पर। इल्जाम क्या है कि वहाबियों का खुदा का ये तस्वर है, और इसका काउंटर क्या कर रहे हैं आमर नजीर साहब? आमर नजीरियत साहब की उस मकतबा फिक्र की शिकस्त का ये आलम है कि अपने खुदा का दिफा करने के बजाय वो अटैक कर रहे हैं काजी यार मोहम्मद साहब पर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक हो गया, आ गया आपका पॉइंट, आ गया पॉइंट आ गया जी। अहमद नजीर साहब तशरीफ लाइए। मैं कहता हूँ टोनी साहब, मैं तो कहता हूँ आपके मिर्जा साहब को सामने तस्वुर में लाके कहता हूँ, सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझे खल्क़ खुदा गायबाना क्या। ओ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, देखा कि दुनिया आज तुझको क्या कह रही है। आपका मुरीद कह रहा है कि हमारे मिर्जा साहब एक ऐसे खुदा को मानते थे जिसका नाम यल्लाश था, और वो मिर्जा साहब के साथ रजूलियत का इजहार फरमाया करता था। वो मिर्जाइयों ऐसे खुदा को मानते हो, और शर्म और हया होती है, कुछ हया होती है, डूब के मार जो इसको मानते हो जो आपके नबी के साथ रजूलियत का इजहार करता था, और बकायदा उसने वो शक्ल तस्वीर खींच के दिखाई है कि इस तरह से उनकी कैफियत हो गई मिर्जा साहब की जिस तरह से एक औरत की होती है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और ये वो काजी यार मोहम्मद है जिसके बारे में अब टोनी साहब कहने लगे हैं उनके दिमाग का कोई मसला था। इनके दिमाग में कोई मसला, जो बंदा इस तरह की बात करे उसके दिमाग में कोई मसला होता है। निदा नसर ने जो बात की है ये इसके दिमाग में मसला है, उसकी वालदा फायजा ने बात की है वो इसके दिमाग का मसला है। ठीक हो जी, बहुत शुक्रिया जी। अल्ताफ साहब है, दिमाग का मसला है, आप लोगों का दिमाग। अल्ताफ भाई शायद मौजूद नहीं है, मैं थोड़ा सा इनको जवाब देना चाहूँगा। हर भाई मुझे इजाजत दें। अल्ताफ भाई कहाँ से कहाँ निकल गया, कहाँ हो गया तो हो गया, छोड़ दो यार। अल्ताफ भाई मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ यार, अलीम भाई मुझे इजाजत देंगे? अल्ताफ साहब बोल लें, उसके बाद फिर आप बोल लें। अल्ताफ साहब आपका माइक म्यूट हो गया है, अपना माइक खोल लें।
1 to 1 बात होगी लीम साहब, दो दो तीन दिन बंदी बोले कि मतलब ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਰੋੜਾ ਤੇ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕੁੰਭਾ ਜੋੜਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਨਿਦਾਨ ਕੀ ਨਾਸਰ ਕੀ ਨਾ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆਗਾ। ਇਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖੁਦਾ ਲੂਤੀ ਜੇ, ਇਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਣੇ ਭੇਜਣੇ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਵਾਲੇ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਝੂਠ ਤੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਤੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 2 ਦਿਨ ਠੱਪ ਖਤਮ। ਦੈਟਸ ਇਟ। मौका दो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मेरे लिए इजाजत, ठीक हो गया, बस। कब से निकलने लगा मैं तो इंशाल्लाह मैं भी एक गल करके ते अब अल्ताफ साहब ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਬੈਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਇਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਹਾਨੀ ਤਲਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ अल्ताफ साहब जा रहे हैं ना, चले जा रहे हैं, अल्ताफ साहब जा रहे हैं ना, तो जा रहे हैं तो जाए। मैंने अपनी बात में अपनी बात को जवाब, आपने अपनी खुजली जुबान की जरूर मिटानी है। आप अपनी खुजली क्या मिटा लें, आपको अच्छा खुरकेंगे। नहीं, जो वो खुजली करके गए हैं वो आप मिटानी तो सुने तो सही, सुने तो सही। मैं कहता हूँ कि निदा नसर ने बात की, मुझे बात सुनने दें, मुझे बात करने दें। वो खुजली कर गए हैं ना, दूसरे तो सुनने वाले हैं ना। ये खुजली उनकी होगी जो यहाँ सुन रहे हैं। निदा नसर मैं ये कह रहा हूँ, किसका निदा नसर का मौजू नहीं है यहाँ पे भाई। तो मैं मुझे बात करने दे, अगर लिंक ना किया तो मुझे बताना ना। मैं ये कह रहा हूँ लिंक तो अब हर चीज का हर चीज से हो जाता है। सलीम भाई इनको 1 मिनट दें, ये अपनी बात मुकम्मल डॉक्टर साहब करने दें। खुजली मैं सोनी हाल करता हूँ, मैं कोई मसला नहीं। करें जी, अपनी बात मुकम्मल करें। जानदारी छाड़ दो लीम साहब, मरना जा हर गल करो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी बंदा इनके अंदर का गंद बयान करता है, ये कहते हैं इसके दिमाग में खलल वाक़या हो गया। अब निदा नसर के बारे में भी कहते हैं कि उसके दिमाग में खलल वाक़या हो गया। भाई अगर उसके दिमाग में खलल वाक़या हो गया, उसकी वालदा के दिमाग में खलल तो नहीं ना वाक़या हुआ। और फायजा बीबी आपके चौथे खलीफा की बेटी है, और उसको भी कहते हैं उसके भी दिमाग में खलल वाक़या हो गया। वो कहती है कि जो कुछ मेरी बेटी कह रही है मैं इसकी 1000% तस्दीक करती हूँ, मेरी बेटी सच कह रही है। और ऐसा काम तो दहरियों के घर में भी नहीं होता, जानवरों के घर में भी नहीं होता जो हमारे घर में हुआ है। इतना गंद जो हमारे घर में पाया जाता है, ये दहरियों और जानवरों के घर में भी नहीं होता। इतना गंद है हमारे अंदर। बाप अपनी बेटी को पड़ गया है और कहते हैं उसके दिमाग में खलल वाक़या हो गया। वो खुद तस्दीक कर रही है, वो कहती है मुझे पता ही नहीं चला, मेरी आंखों के नीचे ये क्या हो गया। वो कहती है तो तुम्हारा दरवाजा कैसे तोड़ा उसने, वो शैंडी शाह ने। वो कहती है दरवाजा इसलिए तोड़ा, कार्ड उसके साथ, कार्ड उसके पास होता है। सारी जितनी भी है ना लजनाएं, इन सब के कार्ड उसके कमरों के उसके पास होते हैं। तो उसने वो कार्ड इस्तेमाल, बिल्कुल आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात कर रहे हैं। बिल्कुल आप कह रही हैं उसके दिमाग में खलल वाक़या। सलीम भाई अब इसका टाइम हो गया, मुझे बात करने दें। कि ये कहते हैं कि खलल वाक़या हो गया। जो भी बंदा इनका गंद अंदर का बयान करता है, ये खलल वाक़या हो गल होगी ना, उनको खामोश हो। ये खलल वाक़या कैसे हो जाता है भाई? मैं सुनाना तेनू खलल अगर आपकी इज्जत लूटी है, आप इसको खामोश करें ना। बहुत शुक्रिया। आमर नजीर साहब देखें, हमारे लिए किसी का घर हुज्जत नहीं है, हमारे लिए है हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का दीन हुज्जत। आपके लिए अगर किसी का घर हुज्जत है तो फिर नरगिस का घर भी आपके लिए हुज्जत है, फिर नसीबो लाल का घर भी आपके लिए हुज्जत है, और हीरा मंडी में बसने वाली हर औरत आपके लिए हुज्जत है। तो आप अपनी बहनों के घर देखें, हीरा मंडी में जाकर उनके हालात देखें और नरगिस को पहले दुरुस्त करें। आपकी वो प्यारी बहन है, ख़त्म नबूवत की मुजाहिदा है और दीन इस्लाम की पाबंद है और सरकारी मुसलमान है। फिर आगे चलें तो ये आपके मौलाना वहीदुद्दीन साहब हैं, अहले मकतबा अहले हदीस के पाबंद हैं। उन्होंने माँ बहन और बेटी से ज़िना की इजाज़त दी हुई है कुरान और हदीस की शक्ल में, कुरान और हदीस की रोशनी में। फरमाते हैं कि आप अपनी माँ बहन बेटी से अहले हदीस हो ज़िना कर सकते हो। आपके मकतबा है, आप निदातुन नसर की बातें कर रहे हैं, आप फलाने की बातें कर रहे हैं, और ये अहले हदीसों की शक्ल, ये है आपके घर की शक्ल। आप तो कुरान और हदीस की सूरत में माँ बहन बेटी से ज़िना करते हैं।
آپ ہمیں آ کر سبق دے رہے ہیں جی گند ہے. یہ ہے اصل گند. یہ فتوے پڑھیں. ماں بہن اور بیٹی سے زنا کی اجازت. مولانا وحید الدین زمان صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں زنا کی اجازت دیتے ہیں. یہ ہے آپ کی اصلیت. اور آپ کو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف کیوں نہ ہو, وہ یہ کام نہیں نہ کرنے دیتے. جماعت احمدیہ ایسے فتووں کو کہتی ہے لعنت ہے. اور آپ کو ایسے فتووں کی ضرورت ہے. آپ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کہاں مانیں گے, کہاں جماعت احمدیہ کی مانیں گے؟ پھر آگے دیکھیں آگے کیا کیا کہتے ہیں. یہ تو ایک چھوٹا سا شوشہ ہے. آگے کیا کیا کہتے ہیں کہ کیا جو ہے نا, آپ جب اہل حدیث ہوں گے, بریلوی ہوں گے, وہابی ہوں گے, تو آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. باپ کی مشترکہ عورت سنیں میری ہن گل کیوں نوٹ کر رہا ہوں, رکے ہاں ایک حوالے دا جواب نہیں, اتنے سارے حوالے دا جواب دیو. اگے لکھ دے نے باپ کی مشترکہ عورت. اہل حدیث جو ہے نا, اہل حدیث اگر کسی نے اگر یار میں وہ خاموشی نہیں ہویا جا رہا, خاموشی نہیں ہویا جا رہا. میری بات سن, کالو صاحب رکو. فیصل بھائی میں ہوسٹ کر رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں جتنا ٹائم وہ لیں گے آپ کو اتنا ٹائم ملے گا. یا تو بتائیں کہ میں دونوں طرف غلط کام کر رہا ہوں. علیم صاحب بات یہ ہے کہ عامر نذیر صاحب نے کھل کے بات کی تھی. عامر او بھائی صبر کرو نا, کتاب دا سکین ہے, جا کے اپنی کتاباں چیک کرو. کتاب دا سکین نہیں, یہ کتاب کا مستند سکین ہے. علیم بھائی آپ نے ایک بات اور ہے بڑی سمپل سی, کہ جب عامر نذیر صاحب حرزہ سرائیاں اور باتیں کر رہے تھے, ہم نے پورا ان کو موقع دیا تھا. بات کر چکے, مجھے بات کروانا جانو 2 منٹ ہے, انہاں دا جواب دینا جو. ہاں جب تک ان کی بات مکمل نہیں ہوگی. سیکنڈ ابھی اور ہیں. ابھی علیم بھائی بات مکمل ہو لینے دیں. عامر نذیر صاحب کی بات منٹ کی لحاظ کیے بغیر ان کو وقت دیا گیا تھا بات مکمل کرنے کے لیے. چلے گئے ان کو میں نے اتارا نیچے, کیونکہ وہ ان کی زبان کی وہ بیچارے عادت سے مجبور ہیں, ان کے پاس ایک ہی حال ہوتا ہے. 2 منٹ رکھ لیں ان کے, 2 منٹ کر لیں ان کے تقریباً. ہاں 2 منٹ کر لیں پہلے. یہ جو عامر نذیر صاحب کی بات کا جواب یہ دے لیں کالو صاحب, اس کے بعد 2 منٹ طے کر لیں, ٹھیک ہے. اور چونکہ یہ بات مسترد کر رہے ہیں کتابوں کا حوالہ دکھا کے, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر یہ بات کر لی جائے. حوالہ لے لیں, حوالہ بھی لے لیں, اور عامر نذیر صاحب بھی حوالہ پیش کریں, اور یہ بھی حوالہ پیش کریں. بات ہو گئی ہے, اب اس کے بعد یہ ٹاپک کلوز ہو جائے گا. اوے نہیں, عامر نذیر صاحب کو انوائٹ کر دیا ہوا ہے. انوائٹ کریں بالکل, لیکن یہ جی جی انوائٹ کریں بالکل, لیکن اس کے بعد وہ والا ٹاپک ختم, پھر آگے کوئی اور بات کریں, ورنہ یہ ٹینس کی پنگ پونگ تو چلتی رہے گی, وہ پھر نہیں پہنچے. اب یہ بھی او کر دیا, او بھیا کر دیا ہوا ہے, عامر نذیر صاحب کو ایڈ کر دیا ہوا ہے. رک جایا کیجئے, ہم بھی کس طرح بیٹھے ہیں یہاں پہ, یہی کام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اچھا اب ڈاکٹر صاحب بات ایسے ہے کہ اب یہ کالو صاحب نے 1.5 منٹ بول لی. علیم بھائی میں ان کی بات کا جواب دے رہا ہوں, انہوں نے جو سوالات کیے تھے میں اس کا جواب دے رہا ہوں, مجھے جواب دینے دیں. ہاں جی علیم صاحب مجھے بات کریں پلیز. جی پیچھے آپ نے دیکھ لیا کہ جو اہل حدیث ہے, جو وہابیت ہے, میری بات تو ہونے دینا. اب جیسے آپ کو میں نے حوالہ دکھایا کہ ان کے مذہب میں ماں بہن اور بیٹی سے زنا جو ہے نا وہ جائز ہے. مکتبہ اہل حدیث ایسے نہیں, ایسے رکے. اچھا پہلے کنفرم کرنے, لوگ ٹوکے, بندہ کوئی ٹوکے گا نہیں, بیچ میں کوئی بندہ نہیں ٹوکے. بات ایسے ہے, کالو صاحب نے 1.5 منٹ بات کر لی ہے. اب کالو صاحب جتنا ٹائم لیں گے اتنا ٹائم میں آپ کو دوں گا. غلط بیانی آپ کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں جی؟ جانبداری آپ کر رہے ہیں. 3 منٹ میں گن رہا ہوں, میرے پاس گھڑی ہے. 3 منٹ بات کی ہے. عامر نذیر صاحب مہربانی کریں, باقی بحث کی باتیں ہیں. میرے ساتھ سٹاپ واچ لگائی ہوئی ہے, میرے پاس سٹاپ واچ ہے, میں تصویر کھینچ کے میں سٹاپ واچ پہ لگا دیتا ہوں. باقی بحث مجھے صرف ایک بات کی گارنٹی چاہیے, مجھے صرف ایک بات کی گارنٹی چاہیے, جتنا وہ ٹائم لے گا اس ٹائم میں اگر کوئی بندہ بیچ میں بولا, آپ نے بلا تکلف اس کو نیچے اتارنا, پھر ٹھیک ہے نہیں مارنا. میں جی آپ بھی نہیں بولیں گے, میں بھی ایسے ہی کروں گا. ہم تو نہیں بولتے. اب آپ جو پڑھ رہے ہیں, اب آپ جو پڑھ رہے ہیں, پہلے سارے لوگ بات سن لیں. 200 بندہ دیکھ رہا ہے, بعد میں کسی بندے نے میرے اوپر بات کی تو پھر میں حق محفوظ رکھتا ہوں بات کرنے کا. میں پہلے بتا رہا ہوں, بتا دیں 3 منٹ بات کرنی ہے, 4 منٹ بات کرنی, اس کے بعد مجھے اتنا ٹائم دینا. بس بیچ میں بولا تو جس بندے کو رکے, جس بندے کو ابھی کو مسئلہ ہے ابھی اوپر آ جائے. بعد میں کسی بندے نے مجھے یہ کہا کہ یہ بات کر دی, وہ بات کر دی, اور بھائی میں بھی حق محفوظ رکھتا ہوں, میں بھی 200 بندے کے سامنے اس کو پھر ویسے ہی جواب دوں گا. میری ذات کے اوپر کسی کو شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ فلانی بات کر دی, فلانی بات کر دی, فلانی بات کر دی.
कालू साहब को पूरा मौका है, कालू साहब बात कर रहे हैं माँ और बेटी से जना की इजाजत है वापियों के अंदर, वो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, 1.5 मिनट हो गए, आगे मुकम्मल करेंगे। सुनने के लिए हौसला रखना जरा। अमर नजीर साहब आएंगे, वो साबित करने की कोशिश करेंगे कि जमात अहमदिया के अंदर क्या बातें हैं और वो इसका जवाब देंगे। अगर किसी बंदे ने बाद में आके मुझे ये कहा तो ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਮੁਚੜਾ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਈਓ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਮੁਚੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਲੜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਤ करने दो। आमर नजीर साहब रुकिए, मुझे बात करने देना पहले। मैं पहले कह रहा हूं, लोग देख रहे हैं, मुझे आप लोग बिल्कुल न्यूट्रल समझे, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी अभी फिलहाल दोनों मद्दे मुकाबल से। मेहरबानी करें, मेरे ऊपर कोई बंदा कोई इल्जाम न लगाए। कालू साहब अब आप बात अलीम भाई बात आप भूल रहे हैं, अलीम भाई एक बात आप मिस कर गए हैं, अलीम भाई एक बात आप मिस कर गए हैं, उसका ध्यान रखिएगा। वो ये है कि ये बात आमिर नज़ीर की बात के मुकाबले में हो रही है। इसके जवाब में आमिर नज़ीर ने अपनी कोई बात पेश नहीं अब करनी, क्योंकि ये गए थे निदाउन नसर पे, ये गए थे काजी यार पे, उसके जवाब में ये बात आ रही है। ठीक है, ये अब ये नहीं होगा कि इसके बाद उनको दोबारा मौका दिया जाएगा, ये ध्यान रखें, क्योंकि फिर डबल बारी हो जाती है इस तरह एक ही मौजूद के ऊपर। पता क्या है, सीधा एज अ न्यूट्रल होस्ट अब मेरा क्या होता है यार, आप फिर बोल रहे हैं फैसल भाई आप फिर बोल रहे हैं, इतना बंदे का टाइम है यार, कीमती टाइम है लोगों का, जाया होता है, तो नीचे तशरीफ रखें आप थोड़ी देर। बात ऐसे है डॉक्टर साहब, 2-2 मिनट का 1.5 मिनट 3-3 मिनट की 2-2 बारियां दे दें, आप और मैं सुकून से आराम से बाहर, वही क्वायदो ज़वाबत दोनों समझदार लोग हैं, वो इनको दे देते हैं। जैसे खुल के कालू साहब बात करेंगे, आमिर नज़ीर साहब करेंगे, तज़ीक नहीं करनी। मुझे एक बात करनी है, मुझे 3 दफा इस बंदे ने नीचे उतारा, मुझे बात करनी है। अगर आप इसने मुझे नीचे उतारा, मैं सबको कहूंगा बाइकआउट करके निकल जाइए। अभी किसी को नीचे ना उतारे, अभी मेहरबानी करके कोई किसी को नीचे ना उतारे अभी। बांदर के हाथ में आपने माचिस पकड़ाई, वो हटाएं इनको एडमिनशिप से, अगर आप चलाना चाहते हैं अपनी ब्राड और चाहते हैं कि मुसलमान आकर आपकी ब्राड पर मुझे बांदर कह रहा है, इसकी अपनी मैं आपको नहीं बांदर कह रहा, एक बेटा मुंह बंद करवाओ, बात नहीं करने देते, क्या मतलब है ये यार क्या प्रॉब्लम है, आप लोग क्यों बहस बकवास की तरफ बात लेके जा रहे हैं। अपना कालू साहब आप बात जारी रखें, अपना टाइम ले, उसके बाद में आगे। जैसे कि आपने देखा कि वहाबियत में क्या क्या होता है, वहाबियत में माँ बहन और बेटी की कोई तमीज़ नहीं है, ये अपनी माओ बहनों और बेटियों से जना करते हैं, जनाकार औरतों के ये बच्चे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी माँ बहन और बेटी से जना जायज़ करार दिया हुआ है। आगे लिखते हैं बाप बेटे की मुश्तरका। सॉरी मैं हाशिया नहीं, मैं सिर्फ फतवा पढ़ूंगा, जो फतवा लिखा है मैं वो पढ़ूंगा, अपना लफ्ज नहीं बोलेंगे आप बीच में। ओके जी, अपना लफ्ज नहीं बोलेंगे। बाप बेटे की मुश्तरका औरत, अगर किसी ने टाइटल से आप समझ गए हैं कि बाप बेटा की मुश्तरका औरत, तो इसी बारे में मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी से भी किसी ने इस किस्म का सवाल किया, इन्होंने जवाब दिया दोनों दर्ज झैल हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चूतरों और रानों में वती करना, जना की इजाज़त। वहाबियों के मौलवी नूरुल हसन भोपाली ने लिखा है कि हर मकरदा जना इस जना जायज़ अस्त। ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ के सुनाने हैं, क्योंकि फ़ारसी च लिखा है। वो कहते हैं मोता फ़ी हकीकत जना है, जिसका नाम सिर्फ तब्दील किया गया है और साफ सारे वही हैं, क्योंकि मोता में गवाह रखने की ज़रूरत नहीं, यानी वहाबियत में मोता जायज़ है। आगे मुश्तजनी वाजिब है, वहाबी मुश्तजनी जो है ना उसको वाजिब समझते हैं, इसके बगैर इनका गुजारा नहीं। आगे लिखा हुआ है मोता यानी कंजरीबाजी जायज़ है। ये हमारी लिखी हुई किताब नहीं है, ये वहाबियों की और बरेलवियों की अपनी मुश्तरका किताब है। हम पर ना इल्ज़ाम लगाना, ये आपके अपने इज्तमाही भाइयों ने लिखी हुई है कि आप में मोता जायज़ है और आप मोता कर सकते हैं। ज़नाकारी यानी कंजरीबाजी ये आप में जायज़ है। फिर आप सूद। कालू साहब बहुत शुक्रिया, आपके 3 मिनट पूरे हो गए हैं। कालू साहब 3 मिनट पूरे हो गए हैं, बहुत शुक्रिया, आपने 2 मैं हवाला लगाने लगा हूं, बीच में बोले कोई ना। मैं अलीम साहब मैं आखिरी बार आपको कह रहा हूं, बोलेगा नहीं जी। अगर अब मुझे किसी ने नीचे उतारा या माइक म्यूट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कोई बंदा फिर यहाँ पर मुसलमान नजर ना आए। ऐसी बातें नहीं है, मैं बात कर रही है, सुन लें, कोई बंदा बोले नहीं बीच में। ठीक है, हवाला एक टेक्स्ट मैसेज का होता है, एक ऑडियो मैसेज का होता है। मैं आपके सामने ऑडियो का हवाला लगाने लगा। तेरे कूता दी वजह तेरी बुढ़ी तरह लग मार के पिछवा दे तेरे सानू कदी तू दवाइयां देना है तो कहंदे किसी नु की कहना है तू गुस्सा किसी ने क्यों लाना मैं दुख तेन ओदा जेडी नट गई है तेरे कूता दी वजह तो तेरे सौदे च दाढ़ी को भी हैगी थी। आहो ये मिर्जाई दूसरे मिर्जाई को कह रहा है, सुनना जरा जवाब दूसरे मिर्जाई का।
दोस्तों ये तो मतलब हवाला है इसका कोई? बिल्कुल ये बंदे ही बोल रहे हैं, मैं अपने पास मेरी बात नहीं है। नहीं तो इसमें कोई बंदा भी होगा आपका, तो फिर सुने सुने, बीच में ना बोलें, वो मेरा सारा मोशन आपने तोड़ दिया है। उनका भी रद्द अमल सुने जरा। सुनना जी रद्द अमल दूसरा मिर्जाई का। अमर भाई आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? तो लीजिए दोस्तों, समाप्त फरमाइए लाइक कादियानी का जवाब, जो इनके बहुत मायानाज मुरब्बी और मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब के साथ उनके मुनाजरे मौजूद है, सुनिए। बिल्कुल गलत बात है, ये लईक मुरब्बी का हमकी नाई मुरब्बी है ये। रुके डॉक्टर साहब, यार ये बात गलत है, ये बंदा अहमदी नहीं है, जमात अहमदिया इससे ऑस्ट्रेलिया डॉक्टर साहब बाद में आप बता दें, बाद में मैंने ये तो समझा हाथे गैर अहमदिया दे लत जाके क्यों बेंदी है, मैंने ये तो समझा दूंगा की वजह है की से। डॉक्टर साहब एक सेकंड रुकिएगा। दूजिया दे लोल ते जाके क्यों बेंदियां ने, ये अपने बंदियां को राजी क्यों नहीं होंदियां, याद कादियानी खुसरे ने। देखिए जी, आपको समझ आ गई कि फर्क कादियानी ने ये माइक क्यों बंद कर रहे हैं उनका? कलीम भाई ये बात ही गलत है, ये बाद में हम बताएंगे, बाद में बताएंगे। अभी सर बाद में पहले का बात ही नहीं है सर, इसका मतलब ये नहीं है। बाद में हम बता देंगे कि ये सुनो रुके। नहीं हर घर दी मिसाल है, कोई सिख ना फसी है, कोई किसी तुर्के ना फसी है, कोई मराठी ना फसी है। ज्यादा पसंदीदा बंदे ना गैर अहमदी होंदे ने, सीढ़ियां दी बुंड मारदे ने। ये की वजह है, ये कोई टेक्निकल फॉल्ट है तुम्हारी जनानियां की या बंदियां दी? बस अभी ना आपकी बात चक्कर है। तो दसो मिर्जाइयो, लीजिए दोस्तों, आपने सुना कि बताते हैं, अभी बताते हैं। अभी जाके कर मेरे टाइम बोलें तो मेरे टाइम से कोई ना बोले, इसको कमोच करवाएं लीम साहब। का मुनाजर है इनके कादियानी जमात के। चलिए दूसरी ऑडियो भी सुनते हैं, फिर दोबारा फर्क भी सुनेंगे। अमन साहब आपके 3 मिनट और 5 सेकंड हो गए हैं जी, इनका टाइम हो गया है डॉक्टर साहब, इनका टाइम हो गया है जी, टाइम हो गया जी इनका। ये बड़ा करें जी स्क्रीन को। अच्छा जी, बात ये है सर नहीं, मुझे बात करने दे, फिर आप करना, मुझे बात कर ये स्क्रीन बड़ी करने की लीम भाई। मैं एक अहम बात बता देना चाहता हूँ। 5 सेकंड हो गए आपके अमन नजीर साहब। मुसलमान जो उनसे इल्जाम करते हैं, 3 दोबारा सुन मिनट लेते हैं। और 5 सेकंड आपके हो गए हैं। 3 मिनट और 5 सेकंड, 3 मिनट और 31 सेकंड आप हो चुके हैं। अमन नजीर साहब गलत कर रहे हैं, अभी आप अपने टाइम के अलावा आप चला रहे हैं। 3 मिनट और 37 सेकंड अभी हो चुके हैं। क्या हुआ है? 3 मिनट और 37 सेकंड हो चुके हैं आपकी बारी। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਔਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਜੇ। ਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬੇਈਮਾਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। नजीर साहब ਮੈਂ 47 ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਾਈਮ 3 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ था। ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਓ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮਿੰਟ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਮਿਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਲਾਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤਾਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। मेरा दरमियान में माइक 3 बार म्यूट किया गया। जी हाँ, वो एक सेकंड के लिए 3 बार माइक म्यूट हुआ। 3 सेकंड निकाल लें। दो मिर्जाई रब्बी आपस गल पे करते ने ते मिर्जाइयां दे घरां दा हवाल पे बयान करते ने। मैनूं सुना सुनो अपनी बारी में बोले जी। डॉक्टर साहब अब आप बोले। मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज करनी चाहूंगा, सिर्फ दरमियान में एक बात वाजे कर देना चाहता हूं कि एक बंदा इनकी किताबों में से हवाले पेश कर रहा है जो मुस्तनद किताबें इनके अकायद को और इनके शरई हुदूद को बयान कर रही हैं, और एक तरफ ये एक ऐसे शख्स का हवाला यहाँ पेश कर रहे हैं जिसको आज से 5 या 6 साल पहले इन्हीं मजमूम या नाजेबा हरकत की वजह से जो जमात को बदनाम करने की खातिर वो करते थे साहिब, जमात से इखराज भी कर दिया गया, बल्कि जमात अहमदिया ने उनसे अपना ऐलान ला ताल्लुकी ऑफिशियल कर दिया हुआ है। ठीक है, वो साहिब इनके मदरसों के पढ़े हुए थे, वो साहिब एक ऐसे इलाके के पले बूसे और ऐसे जमातों के पढ़े हुए थे। वो खुद अपने पास से बयान करते थे कि मैं अहले हदीस और अहले बरेलवियों के मदरसों का पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर अपने आप को अहमदी भी कहते थे और कभी भी उन्होंने अपनी बैत का इजहार नहीं किया।
اور اس کے بعد آ کر یہاں پر جب جماعت نے پوری تحقیق کر کے ان کا باقاعدہ اخراج اور لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، بلکہ اخراج نہیں لا تعلقی کا اعلان کیا، اخراج تو تب کرتی کہ وہ جماعت کا حصہ ہوتے تو یہ مطلب حالت دیکھیں ان کے معیار کی کہ ایک طرف ایک ایسے بندے کی یہ بات پیش کر رہے ہیں جس کا کسی حوالے سے کوئی تک نہیں بنتا، کوئی آفیشیل سچویشن نہیں ہے، اور ایک طرف ان کی کتابیں، ان کے فقہ، ان کے علماء کی چیزیں. جواب دیکھیں، معیار دیکھیں، سارے عوام خود فیصلہ کر لیں، ان کے سامنے ہے سب کچھ. یہ مطلب وہی بات ہے جو کالو صاحب نے کی تھی کہ ہم ان کو نرگس کا حوالہ دے کر، میں ایک لاسٹ جملہ بول دوں جی، کہ ان کو اگر نرگس کا حوالہ ان کو میں جواب دوں گا جی ان کی بات کا. میاں خلیفہ جو ان کی نہیں کوئی بندہ نہیں بولے گا، کوئی بندہ نہیں بولے گا ڈاکٹر صاحب کی بات میں. ہاں، ان کی وہ میاں صاحبہ ہیں، وہ بھی ان کی کوئی خاص مخصوص لگتی ہیں، انہیں کے فرقوں میں سے ہیں نا، اہل بریل میں سے ہیں یا اہل دیوبند میں سے ہیں یا اہل سنت والحدیث میں سے یا کہیں سے بھی ہیں، وہ بھی تو ہیں، تو ہم ان کو ان کا حوالہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں ان کی. تو اس لیے ابھی آج کل وہ جو ایک کوئی نئی خاتون یوٹیوب والی آئی ہوئی ہیں، ان کا بھی ان کو حوالہ دے، وہ بھی مسلمان خاتون ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں. وہ جو رابی پیرزادہ صاحب ہیں، وہ اب ماشاءاللہ دیندار ہو گئی ہیں، وہ پہلے کیا کرتی تھی، ان کی سگی بہنوں میں سے ہیں نا، کزنوں میں سے ہیں. تو بھائی اگر اس طرح انفرادی مثالیں دینی ہیں تو ہم تو شاید 20-30-50 کروڑ ہیں، آپ لوگ 7 ارب ہیں، آپ لوگ زیادہ، ہمارے پاس آپ لوگوں کی اس سے ہزاروں گنا زیادہ مثالیں موجود ہیں. تو کالو صاحب بسم اللہ کیجیے، جواب دیجیے آپ. میں درمیان میں صرف اب آپ کو یہ توجہ دلانی تھی. یہ اب میری ٹرن ہے جی، یہ درمیان میں بولا ہے، آپ مجھے ٹائم دیں. علیم صاحب 1 منٹ ہے کالو صاحب کے بعد، اس کے بعد آپ کی بات. یہ کتاب ہے جس سے میں حوالے دے رہا تھا. ٹائم چل رہا ہے، ٹائم میں نوٹ کر رہا ہوں جی. کالو صاحب 1 منٹ آپ نے بیچ میں ان کو کیوں ٹائم دیا زکریا صاحب کو؟ شروع کریں. زکریا صاحب کالو صاحب کے ٹائم میں بولے ہیں. زکریا صاحب کالو صاحب کا ابھی ٹائم ہی نہیں ختم ہوا ان کا، اور میں نے سٹاپ واچ لگائی ہے یار، آپ کو کیوں یقین نہیں آ تو رہا؟ بھائی وہ انہوں نے ایک ٹرن لے لی ہے، زکریا صاحب نے، اب مجھے بولنے دیں. 2 منٹ ان کو دیے ہیں، 1 منٹ میں کالو صاحب کو دوں گا. ٹھیک ہو گیا، زکریا صاحب کا جواب زیادہ ہی دیں گے، کالوں کا جواب میں دیں گا. 2 منٹ نہیں، یہ وہ 3 کتاب ہے. 37 سیکنڈ انہوں نے استعمال کیے تھے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. میں نے بات کی ہے 2 منٹ 30 سیکنڈ کالوں میں بات کریں گے پلیز. علیم بھائی ٹھیک ہے، جتنی بھی صاحب کی ہوگی زیادہ ہی گل کریں گے، یہ بھی تھا میں کدی گل کا جواب میں دیں. 1 منٹ 30 سیکنڈ کالو صاحب بولیں گے، ڈاکٹر صاحب 2 منٹ نہیں 1 منٹ 30 سیکنڈ بنتا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس سے میں نے حوالہ جات دیے ہیں، الوہابیت. بولیں گے جی میرا ٹائم شروع کر دے. یہ وہ کتاب ہے الوہابیت جس سے میں نے جو ان کو حوالہ جات دی ہیں، جو کہ ان کے مذہب میں ماں بہن اور بیٹی سے جو زنا جائز ہے، الوہابیت میں، اہل حدیث میں، مولانا ثناء اللہ امرتسری کے مذہب میں، تو وہ میں نے اس کتاب سے دیے ہیں. اگر کیس کرنا ہے تو اس پر کریں، اگر کسی نے بات زبانی کرنی ہے تو اس پر کریں جا کر. ہمیں نہ بتائے کہ یہ اللہ اقوان نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے. یہ آپ کے بھائی نے کہا ہوا ہے، میں کہہ رہا ہوں. یہ کتاب ہے، نوٹ کر لیں، یہ اس کا مکتبہ ہے سارا کچھ جہاں سے یہ چھپی ہوئی ہے. یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہابی اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے زنا کرتے ہیں، ان کے مذہب میں زنا کی اجازت ہے. یہ تو ایک چھوٹی سے ہے، ابھی تو میں نے دوسری بہت سی کتابیں کھولنی ہیں. ابھی سے آپ جو ہے شلوریں گلی کر گئے. حوصلہ رکھیں، ہمت رکھیں، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. ابھی تو اس طرح کی کتابیں ہمارے پاس ہزاروں ہیں. عامر نذیر صاحب، آپ کا تو بڑا ہم لحاظ کرتے تھے، لیکن آپ کو آپ کا آئینہ دکھانا ضروری تھا کہ یہ ہے آپ کا مذہب، کہ آپ اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے زنا کرتے ہیں. آپ کے فقہ میں یہ اجازت ہے کہ ماں بہنوں بیٹیوں سے زنا کرو. آپ کا خدا ایسا لواطت کراتا ہے اور آپ اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے زنا کرتے ہیں. یہ ہے آپ کا فقہ. اس کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں سے زنا کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ہے آپ کا مذہب، یہ ہے آپ کی حقیقت. بولو. یہ دیکھیں کتاب اور دیں جواب. آپ کی جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، کیوں یہ آپ نے اسلام پر جھوٹ بولا، اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے زنا کرتے ہو اور اسلام کا نام لگاتے ہو اس کو. یہ ہے آپ کا اسلام. میوٹ کر لیں. بہت شکریہ. پہلے میری اسکرین بڑی کریں. سب سے پہلے جی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ بھابی کون ہے. سیرت المہدی صفحہ 333 حصہ دوم بیان کیا کہ ایک دفعہ کسی دینی ضرورت کے ماتحت حضرت مسیح موعود نے مولوی نور الدین کو یہ لکھا کہ آپ یہ اعلان فرما دیں کہ میں حنفی المذہب ہوں، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ حضرت مولوی صاحب عقیدتاً اہل حدیث تھے. اے جے وہابی. تے ہن سنو جی ذرا وہابیاں تے کرتوت. ہن میں تانوں دسدا کہ شلواراں جڑیاں او کنج گلیاں ہوندیاں تے کدیاں گلیاں ہوندیاں. اینے نام لیا جی ایک کالوں صاحب نے کوئی وچ ہیرا منڈی دا.
ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ? पहले आप जरा हल्फिया इकरार सुन लो। मैं अपने इल्म मुशाहदा रोयत ऐनी और आंखों देखी बात की बिना पर खुदा को हाज़िर नाज़िर जानकर इस पाक ज़ात की कसम खाकर कहता हूँ मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद खलीफा रब्वा ने खुद अपने सामने अपनी बीवी के साथ गैर मर्द से ज़िना करवाया। अगर मैं ਮਾਈਕ ਕਿਨੇ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮਾਈਕ ਕਿਨੇ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਫਲਾਣੇ ਢਿੰਗੇ ਨੇ? ਲਾਓ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਹੁਣ। क्यों जी, क्यों थले लाया है? ये मैं क्यों थले लाया है? मैंने उतारा है और मैंने इसको म्यूट किया। मेरी मर्जी, मेरी मर्जी भाई, मेरी मर्जी। पहले सुन ले मेरी बात। तेरी मर्जी है, तू केवें? मैं बताता हूँ कि मैं मेरी बात सुने, सलीम भाई देखें, हलीम साहब ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਤ ਦਾ अब कानू साहब ने पूरा बोला है। कानू साहब ने मेरी बात सुने। मैं आमिर साहब क्यों आप खामोश रहे? आमिर साहब मुझे बात करने, आप खामोश रहे। डॉक्टर साहब, मैंने पहले शुरू में ये डिस्क्लेमर दिया था कि अब कालू साहब को टोका नहीं है, ना मैंने रोका था, ना मैंने टोका था, ना मैंने कालू साहब का माइक म्यूट किया था। कालू साहब ने तफसील से वहाबियों के जो माँ बाप और बच्चे और वो अपनी बेटियों के साथ वो सारा ज़िना की कार्रवाई उन्होंने सुनाई है। जी बिल्कुल। अब बात बता मसला क्या है? नहीं, मसला मैं बताता हूँ। एक सेकंड अलीम साहब, नहीं अलीम साहब, एक सेकंड आप होल्ड करें प्लीज। अब यहाँ पे कालू साहब ने उनकी मुस्तनद किताब का हवाला पेश किया, ठीक है? ये जो बात कर रहे हैं ये किसी भी हमारी मुस्तनद किताब का हवाला नहीं है, ना ये मिर्जा साहब की किताब का हवाला है, ना किसी ऐसी चीज का हवाला है जो हमारे लिए हुज्जत है। इनकी जो बात हुई है वो इनके किसी ऐसे बंदे की तरफ से हुई है मुस्तनद किताब के अंदर से, जो आपने पेश किया वो भी मुस्तनद नहीं है, वो हुज्जत थी हमारे लिए। दो वो पूछा था आपने कि हमारे लिए हुज्जत है? आपकी किताब है भाई। अब तकलीफ जो वीडियो चलाई सी गई थी वो हुज्जत थी क्या? हद हो गई है, ये जुबान ही नहीं बंद करते। बात ये है कि 2 मिनट देने का मतलब ये नहीं है कि 2 मिनट में जो जिसको मर्जी उठा के कोई गालियां निकाल दे या कोई जो मर्जी कर दे। अगर तो ये ऐसा नहीं है तो अलीम साहब आपका डिस्क्लेमर आपको फायदा नहीं देगा, मुझे मेरा यहाँ बैठना फायदा नहीं देगा, ना ताहिर भाई का यहाँ बैठना ताहिर भाई को फायदा देगा, ना जज्जा भाई का बैठना, ना कालू भाई का बैठना, ठीक है? पहले आपको पहले तनवीह की गई है, अब इसका माइक। बात यह है कि तंबीह की जहाँ तक बात है हमने वाज़े बात कर दी है कि जो बात मुस्तनद उसूल और मुसल्लमा बात पर चल रही है भाई हमारी भी मुस्तनद कोई नहीं था। बात इनकी किताब वाज़े पढ़ी हुई छपी हुई अपनी किताब करे, हमसे पूछा था मुस्तनद है? नहीं ऐसे भाई नहीं साहब, ये नहीं हो सकता। ये इसका पहले भी बात सुना है, हमसे पूछा था इन्होंने कि ये किताब आपकी मुस्तनद है? नहीं अलीम साहब ऐसे बात नहीं होती। अलीम साहब ऐसे ही होगी बात, मतलब ये नहीं है, ऐसे ही बात होगी। मेरी बात सुने डॉक्टर साहब, पता क्या है, अब वो जो हवाला जाता है, मैं तो तब भी मुझे पता था कि ये काम होना है। नहीं ये बात नहीं हुसैनी साहब को म्यूट नहीं करें, एक सेकंड बोल नहीं कर रहा जी, ये नाइंसाफी हो जाएगी अगर आप म्यूट करेंगे तो। मैं म्यूट नहीं कर रहा, बात सिर्फ अलीम भाई हमारे कीदे बयान करें, दिखाएं हमारा कोई कीदा इस तरह का है। कीदे बयान कर रहे हैं इनकी मुस्तनद किताब को बताते हैं, फतावा नज़ीरिया मां बहन बेटी से ज़िना करते हैं, अभी बताते हैं आपको। ये फतावा नज़ीरिया में लिखा हुआ है तुम्हारी बात, अभी आपको दिखाते हैं, फतावा नज़ीरिया में लिखी हुई है। अभी बतावे भी आते हैं, पर करो अलीम साहब अगर तुसां साडी टर्न ना दित्ती आज बाइकाट हो जाना ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਲੱਗਾ। नहीं बाइकाट तो मैंने डर नहीं है, नसना पड़ेगा काफी देख चुके हैं, ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੇਮ ਕਾਫੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ हैं, आज नहीं देखनियां। एक सेकंड रुक, कोई बाइकाट ਦਾ ਨਹੀਂ कोई ਮਸਲਾ, मैं सोच ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਨੇ ਹੋ ਗਏ। कालू साहब बाकायदा डॉक्टर साहब एक मिनट जरा, डॉक्टर साहब जी प्लीज, डॉक्टर साहब एक मिनट जरा, मैं पता कि नतीजे पे पहुंचा हूँ। बात पता क्या है, मैंने ये बात पहले की थी और तब मैं ऐसे ही बोला था और मैं चीख के बोला था और मैं बावाज़े बुलंद बोला था। मैंने कहा था अगर ये बात अब जो कानू साहब ने बात की है अब किताब से पढ़ के की है, मेरे ख्याल में मेरा ये दयानत का तकाजा है एज अ होस्ट, मैं किसी को म्यूट नहीं करूं और मैं उनको वो टाइम दूं जिसका मैंने प्रॉमिस किया है, और वो भी बात जो है वो किताब से करें जैसे कानू साहब ने पढ़ के की है। वो बात आशिया रही के अलावा बात करना चाहें तो उनको पूरा टाइम मिलना चाहिए।
ये अलीम भाई देखिए, आपने जो बात की है वो आपने दुरुस्त की है। आप की मैंने पूरी की पूरी तहरीर पढ़ के सुनाई है मिनवान। अलीम भाई मेरी बात सुनिए, हमारे मुखालिफ की लिखी हुई किताब हमारे लिए हुज्जत तो नहीं है ना। सुने, एक मुखालिफ है जो हमारा जो मुखालिफ है, अलीम भाई मेरी बात पूछा था वो हमारे लिए हुज्जत है। हाँ, आपका मुखालिफ पूछा था तो बस ये भी आपके लिए हुज्जत है। ये पीर है, ये मुखालिफ ने लिखी हुई है। जिस पीर ने, जिस जामिया ने ये किताब बंद करवाया, मेरा टाइम शुरू का मुखालिफ है, उसको बंद करवाया। चीखें निकल रही हैं, अब चीखें मैंने निकलवानी है इधर। हाँ चीका मैं फिर राजपाल की किताब पढ़न लग पांगा, तेरी सारियां दी निकल जानियां ने। अच्छा रुके अब एक सेकंड, अब कालू साहब और डॉक्टर जिया साहब आप दोनों मौजूद हैं यहाँ पे। अब आप मेरी बात सुने। कालू साहब मुझे अब एक बात बताएं, जो आपने वो किताब का पढ़ा है वो कहाँ से पढ़ा था आपने? मैंने इनके अपने मकतबा से छपी हुई किताब है, ये मैं दिखा देता हूँ। दिखाई, जो आपने पहले पढ़ा है कहाँ से पढ़ा है आपने? मैं दिखाता हूँ, एक मिनट मैं वो किताब अच्छा, दिखाता कोई हूँ। बंदा नीचे से कोई बंदा ऊपर ना उठाए भाई, अब कोई बंदा ऊपर नहीं आएगा, अब कोई बंदा ऊपर नहीं आएगा और अपनी बारी भी बोलेंगे। अब मैं बात करूंगा, कोई बंदा माइक नहीं उठाएगा। वो मैंने दूसरा वाला खोल लिया था, एक सेकंड मुझे दें ताकि मैं वो किताब का स्कैन आपके सामने कर दूं। मुझे बताएं आपने वो कहाँ से पढ़ा है और आपने वो क्या पढ़ा है? ये वो किताब है, क्या किसने लिखी है? बड़ी करें, मैं आप सारी देख लें। मुझे दिखाएं आपने वो क्या क्या पढ़ा है आपने। ये किताब है अल वहाबियत। तहसील। अच्छा, किसने लिखी है कालू साहब? ये किताब लिखी है हस्बे अरशाद पीर तरीकत हजरत साहबजादा पीर मोहम्मद शफी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, सज्जादा नशीन दरबार आलिया गौसिया डोडा शरीफ जिला गुजरात। और इनके मुसन्नफा जो हैं वो हैं जी, ये किताब इनके किसके कौन से मकतबा फिक्र की है जी? ये बरेलवी मकतबा फिक्र की, बरेलवी मकतबा। जो बंदे ने किताब लिखी है ये, जिसका क्या अपना है रुतबा और ये बरेलवियत में, और इसको ये कितना मानते हैं? ये सज्जादा नशीन है। ये फिलहाल कोई बंदा नहीं बोलेगा, फिलहाल सिर्फ मैं और कालू साहब बात करेंगे। एक सेकंड बात करने का, आप एक मिनट खामोश हो कालू भाई जी। बात ये है कि जो किताब कालू साहब पेश कर रहे हैं वो क्या किताब है? अकीदा मालूम होता है, ठीक है। जो किताब वो क्या किताब लिखी किसने? भाई मैं बताता हूँ आपको, वो जो भी किताब है वो बताएंगे अभी। बात ये है कि उनकी इस किताब से जो भी वो पेश कर रहे हैं उससे दूसरी तरफ का फरीक का अकीदा मालूम होता है। जो बात डॉक्टर साहब को बुलाया तो अमन नजीर भाई को भी बुलाएं। जो मैं जा रहा हूँ जी, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। इसको उतारे, ये क्या तकलीफ करने आया? अच्छा, जो बात वो कर रहे हैं वो अकीदा नहीं बयान कर रहे हैं, वो दुश्मनाम तराजी कर रहे हैं फकत। ये फर्क है। डॉक्टर साहब मुझे इनसे पूछने थे, डॉक्टर साहब कालू साहब ये वाजे कर दें कि आप उनका अकीदा बयान कर रहे हैं, वो दुश्मनाम तराजी कर रहे हैं, वो हमारा बयान करूंगा। जब बात पूरी सुनेंगे ना तो मैं भी अकीदा ही बयान करूंगा जिसको उन्होंने कुरान हदीस से बयान किया। मेहरबानी करें यार आप दोनों दोस्त, मुझे कालू साहब से बात करने दें जी। अच्छा यार, टोकना नहीं, मैंने कहा कि कोई बंदा भी ऊपर ना आए। अब बात ऐसे है, इसमें ना ये बड़ा मुश्किल काम है। तो जब आप मुझे करने नहीं ना देते तो इल्जामात सारे मेरे पे आते हैं, और मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मुझे जो बंदा सुबह उठे और ऊपर आ गया लीम की किताब के शुरू कर दे, कोई लीम पे फतवे आ जाए। नहीं, आप पर कोई फतवा नहीं आता समझू पहले अलीम भाई, आप पर कोई फतवा नहीं आता। सुने कालू साहब, मुझे भी क्लियर करने देना, मेरे घर में बैठे हैं आप, मेरे मेहमान हैं आप लोग, तो मुझ पे अभी सुबह अभी ये बंदे ने उठ के आ जाना है। इन्होंने कहना है जी आपने हमारी गुस्ताखी करा दी, आप लोगों में हमारे में से किसी ने उठ के आके कहना है कि जी अलीम ने गालियां पढ़वा दी। ऐसे नहीं है भाई बात, रुको। अच्छा कालू साहब, ये जो आपने पढ़ा है, मुझे अब ये बताएं कितनी मुस्तनद किताब है और ये क्या मानते हैं आप? आपने क्या सोचा है इसके बारे में? ये क्या किताब है? ये ऐसी ये किताब है अल वहाबियत, किसी बरेलवी ने लिखी है, कोई पीर फकीर है, कोई इमाम मस्जिद है, या ये इनके अकीदे का हिस्सा है, इनकी लाइब्रेरी में बच्चों को पढ़ाते हैं किताब ये अपनी? बताएं मुझे जी। ये अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं, और ये किताब जिनके अरशाद पर लिखी गई है वो सज्जादा नशीन है दरबार आलिया गौसिया डोडा शरीफ के ज़िला गुजरात में। ये बहुत बड़ा दरबार है, कोई छोटा दरबार नहीं है। उसके सज्जादा नशीन के कहने के पर हुक्म पर इनके मौलाना अबुल हामद मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कादरी अशरफी हैं, जो कि ख़तीब हैं मस्जिद अलामा अब्दुल हलीम रहमतुल्लाह अलैह। वो खतीब हो गए, ठीक, वो बहुत ज्यादा। मुझे ये बताएं कि ये जो ना देखें, खतीब ने लिखी है किताब सज्जादा नशीन के अरशाद पर। सज्जादा नशीन ने अरशाद किया है और उनके अरशाद पर लिखी है जी।
आगे इन्होंने वो उनके अकायद लिखे हैं जो वहाबियों के अकायद मैं हैं। समझ रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ये अकायद लिखे हैं वहाबियों के, वहाबियों के तो खिलाफ किताब लिखी है बरेलवी मकतबा फिक्र के किसी आलम ने, कोई आलम है, मतलब कि वो इतना बड़ा आलम नहीं है कि जिसको मेरे ख्याल मैंने पहले से नाम सुना है ये। अच्छा, मेरा और भी जो ये बरेलवी हजरात है ये जानते होंगे, लेकिन मेरे लिए नाम नया है। कोई एक आलम है बरेलवियों का, सुन तो लेना बात मेरी, सुन तो लेना। कोई एक आलम है बरेलवियों का जिसने वहाबियों की किताब, कोई एक किताब लिखी है, किताब का नाम है अल वहाबियत, यानी कि कोई एक बंदा है उसने एक किताब लिखी कोई नहीं है, सजादा नशीन है। सजादा नशीन हर उसका होता है, दरबार का होता है, वो छोड़ दे। दरबार कोई तो नहीं ना, ऐसे ही होता है। और ये लाहौर से छपी है, कादरी कुतुबखाना लाहौर बाजार सियालकोट से। मैं आपको बता देता हूँ, जो दाता साहब का सजादा नशीन है, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, सारी फैमिली को। अब वो सजादा नशीन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ये ज़हन में रखे। सजादा नशीन का जो आप समझ रहे हैं ना, ठीक है, अगर गलत लिखा है उस पर केस करें, कहें ये हमारे कायद नहीं है। दूसरे ये इनके ये अकायद इनके अपनी कुतब में लिखे हुए हैं। दूसरा मैं इनकी कुतब से ये अकायद दिखा सकता हूँ। बरेलवी है, कोई एक बरेलवी को इमाम मस्जिद है, खतीब है, उसने किताब लिख दी है, किसी कोई एक जिला गुजरात का कोई एक दरबार है, उसके सजादा नशीन के कहने के ऊपर, अरशाद के ऊपर एक किताब लिख दी। ये इसकी हकीकत है किताब की, जो सही बात है, जो असली बात वो ये है। अब दाता साहब का सजादा नशीन आपको मैंने बता दिया, मैं पर्सनली सारी फैमिली को जानता हूँ, मेरी सैकड़ों मुलाकातें हैं, मतलब कि उनकी रिश्तेदार जो है वो पर्सनली हमारे हमसाए थे। तो अब अंदाजा कर लें कि मैं मुझे पता है कि वो क्या है, उसकी वो होगी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सजादा नशीन होना, कोई आलम होना या कोई इस तरह का कोई केस नहीं होता इनमें। अच्छा, अब ये किताब है जो कि मैं पूछता हूँ ज़िया साहब से कि ये कौन साहब है और इनके लिए कितनी हुज्जत है ये। जी ज़िया साहब आइएगा अभी आप। जनाब मेरा टाइम शुरू करें, मैं तो इस बंदे को जानता भी नहीं, तरह की किताबें हुज्जत। अभी टाइम नहीं, अभी टाइम आपको मैं देता हूँ, रुके। अब मुझे बताएं जो हवाला है, ये जो साहिब है जिनका कोई हुज्जत नहीं है, हम तो जानते तक भी नहीं। और ये जो कह झूठ बोल रहा था कि बहुत बड़ा दरबार है, मैंने तो नाम भी पहली बार सुना है। झूठ बोलना तो इनकी सरशिष्ट में शामिल है। ये आपने काबरीन से भाग रहे हैं, तो हम क्या करें? इस बंदे को जानता है। कालू साहब रुके, कालू साहब ना ही कोई ये हुज्जत है। अच्छा, अब मैं जो समझा हूं ना, 200 सवा 200 बंदा देख रहा है, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं। अब जो इधर हुआ है वो सारे लोग समझ लें, पहले गौर से समझ लें। एक किताब का हवाला कालू साहब ने पढ़ा है, एक किताब का हवाला जो कि एक बरेलवी मकतबा फिक्र के कोई आलम दीन जिला गुजरात के कोई सजादा नशीन दरबार के उनके इरशाद के ऊपर किसी एक खतीब ने, किसी एक मुसन्नफ ने वो किताब तहरीर की है वहाबियों के खिलाफ। उसका कालू साहब ने एक हवाला पढ़ा, मैंने पढ़ने की पूरी इजाजत दी, मैंने बिल्कुल नहीं रोका। उसके अंदर जना, मुश्तजनी और ये सारे अल्फाज मौजूद थे और सीधा सीधा वहाबियों के ऊपर पूरा पूरा इल्जाम था। मैंने अपनी गैर जानबदारी का सबूत देते हुए अलीम भाई मेरी एक और बात सुन ले, मैं आपको वजाहत कर दूं। कालू साहब अभी आपकी मेरी वजाहत तो सुन लेना, बात पूरी अभी आपकी मैंने बात सुनी तो है ना। अभी इनके जो अकायद उस किताब में लिखे हुए हैं, इनकी अपनी किताबों से भी मैं दिखा सकता हूं। कितना टाइम यही काम करना है अलीम साहब? तो और क्या करना है? कालू साहब रुकिए, यही काम करना है किताबों से। मेरा टाइम शुरू करें जनाब, वहाबियों के लिए हुज्जत है। टाइम शुरू करें माइक। यार ਜਿਹੜਾ ਲੋਚੇ ਇੱਥੇ ਤਲਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖੈਰ ਮੈਂ ਵੀ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਚ ਤਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੜਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ 232 ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਬਣਨਾ ਨਾ ਅੰਨੇ ਬਣਨਾ, ਅਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਅਗਰ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਨਿਦਾਤੁਨ ਨਸਰ ਦੇ? ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਖਾਲਫ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ? ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਸਕਣਾ ਫਿਰ? ਅੱਬਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੋਗੇ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੋਗੇ। ਅੱਛਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਮਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਗਰ ਨੀਲਾ ਰਸੂਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦੀ ਪੜੀ ਕਿਤਾਬ ਜੇ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਨਾਲ ਲਵਾਈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਤਾ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕੋ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਲਵਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੋਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਦੋਸਤੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਮੁਹਤਰਮ ਸਨਾਉल्लाह ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਜੀ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਰਾਜਪਾਲ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਬੰਦ ਕਰ ਆਪਣੀ ਲੈ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ, ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਹਰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿਸੇ ਬਰੇਲਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਭਾਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਹਾਸ਼ੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ। ਦਨਦਰੀ ਦਾ ਇਤਕਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਮੁਖਾਲਫ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜਾਂਗਾ। ਤਿਆਰ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੁਣਨ ਨਾਲ? ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹਦਾ। ਅਗਰ ਸਹਿਰੇ ਸਦੂਮ ਪੜੇਗਾ ਮੈਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਿਤਾਬ ਸੁਣ ਸਕਦਾ? ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਹਿਰੇ ਸਦੂਮ ਪੜੇਗਾ ਮੈਂ ਰੰਗੀਲਾ ਰਸੂਲ ਪੜਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸੁਣ ਪੜ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਅਗਰ ਸਹਿਰੇ ਸਦੂਮ ਪੜੇਗਾ ਮੈਂ ਰੰਗੀਲਾ ਰਸੂਲ ਪੜਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਪੜੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਨਾਉल्लाह ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਚੀ ਵੜਿਆ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਾ ਵੜਾ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਓਏ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਯਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ, ਦੋਨੋਂ ਦੋਸਤ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਇੱਥੇ ਜੀ? ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੇਹਯਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਵਾਇਆ 4 ਵਾਰੀ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮਿਊਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ? ਇੰਜ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਬਰਾੜ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਉਧਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ 4 ਵਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਵੀ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ 1 ਮਿੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਲਿਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦੋਂ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਦਿਆ ਜੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਰਾੜ ਲਾਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਲਾਇਓ, ਨਾ ਲਾਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਜ਼ਿਆਰ ਸੁਣ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਲਿਆ ਜੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ 3 ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ 3 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਨਾ ਜ਼ਿਆਦ ਸੁਲ ਆਪੂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਾਂਭਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮਿਊਟ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮਿਊਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕੋ ਜ਼ਰਾ। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੱਤਾਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਤੇ ਬਰਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਣੀ। ਜੇ ਬਰਾੜ ਲਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗੰਦ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ 1 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਨ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ करना है। और दूसरी गल ये है ज़ाहिर सूरत साहब तुसीं हाशिया राय नहीं करनी। अब 3 मिनट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ठीक हो गया जी। मिस्री अब्दुर्रहमान साहब के बड़े लड़के हाफिज बशीर अहमद ने मेरे सामने हाथ में कुरान शरीफ लेकर ये लफ्ज़ कहे, खुदा ताला मुझे पारा पारा कर दे अगर मैं झूठ बोलता हूँ कि मौजूदा खलीफा साहब ने मेरे साथ बदफेली की है। मैं खुदा की कसम खाकर यह वाक़या लिख रहा हूँ, बकलम खुद मोहम्मद अब्दुल्ला अहमदी। मैं खुदा को हाजिर नाजर जानकर जिसकी झूठी कसम खाना कबीरा गुनाह है, यह तहरीर करता हूँ कि मैंने हजरत मिर्ज़ा महमूद अहमद साहब कादियान को अपनी आंख से जिना करते देखा है और मैं इकरार करता हूँ कि इसने मेरे साथ भी बदफेली की है। अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझ पर खुदा की लानत हो, मैं बचपन से वहीं रहता था। मिर्ज़ा गुल मोहम्मद साहब मरहूम आप कादियान के रईस आज़म थे और वहाँ बड़ी जायदाद के मालिक थे। मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब के ख़ानदान के रुकन थे। उनकी
उनकी दूसरी बेवा छोटी बेगम ने मुझे बयान किया कि खलीफा साहब को मैंने अपनी आंखों से उनकी साहबजादी और बाद दूसरी औरतों के साथ जिना करते हुए देखा है। मैंने खलीफा साहब से एक दफा अर्ज की, हुजूर ये क्या मामला है? सुनिए जिन्होंने फतवे दिए हैं कि बेटियों से जिना करना। आपने फरमाया कुरान और हदीस में इसकी इजाजत है, अलबत्ता इसको अवाम में फैलाने की मुमानियत है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। ये मैं भी अकीदे ही बयान कर रहा हूँ आपके, ये अकीदे ही आपके ही लोगों ने लिखे हुए हैं जो आपकी जमात के लोग थे। वो कहते हैं कि आपके मिर्जा महमूद साहब बेटी से जिना करके कहते हैं कुरान हदीस में इसकी इजाजत है। अब सुने जी, जो एक आया था बड़ा हीरा मंडी का नाम लेने वाला, ये मिर्जा डॉक्टर मिर्जा यकूब बेग, ये आपकी किताब है अंजुमन अहमदिया शाते इस्लाम, लिखते हैं कि जब मैं मेडिकल कॉलेज की सेकंड ईयर क्लास में पढ़ता था कि हजरत मसीह मौद लाहौर तशरीफ लाए, डॉक्टर अब्दुल हकीम खान मरहूम साहब ने, जो इस वक्त तीसरे साल में पढ़ते थे, मुझे इतला दी। मैं इनके साथ इनकी जियारत के लिए गया। आप महबूब रायों के मकान वाकया हीरा मंडी में मुकीम थे। आपके मिर्जा साहब हीरा मंडी में मुकीम थे। कहाँ भी? हीरा मंडी में। मिर्जा साहब कलम खुद हीरा मंडी में मुकीम थे। आगे सुनिए जी, ये हैं वो वहाबी जिनके बारे में बताया गया है जी कि ये इनका खुदा ऐसे करता है और खुदा ऐसे करता है, ये इन वहाबियों के बारे में बताया गया है। आगे सुने जनाब, लिखते हैं मैं खुदा तआला को हाजिर नाज़र जानकर उसकी कसम खाता हूँ जिसकी झूठी कसम खाना लानतियों का काम है कि मौजूदा खलीफा मिर्जा महमूद अहमद दुनियादार, बद चलन और ऐश परस्त इंसान है। मैं इनकी बद चलनी के मुतल्लिक खाना खुदा, खा वो मस्जिद हो या बैतुल्ला शरीफ या कोई और मुकद्दस मुकाम हो, हलफ मुअक्कद ब अजाब उठाने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। अगर खलीफा साहब मुबाला के लिए निकले तो मैं मुबाला के लिए हाजिर हूँ। ये हैं वो जो बेटियों से ज़िना करने वाले, ये हैं वो जिनके अकीदे में शामिल है कि नऊज़ुबिल्लाह कुरान हदीस ने इजाज़त दी है कि बेटियों से भी ज़िना करो। इसी किताब में लिखा हुआ है कि लोग तो बड़े बेवकूफ़ हैं कि जब बेटी पैदा हो जाती है उसको पालते पोसते बड़ा करते हैं और जब वो जवान हो जाती है तो फिर कहते जिया साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपका टाइम मुकम्मल हुआ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में जिया साहब आपका टाइम, ये जानी खलीफे, जिया साहब आपका टाइम मुकम्मल हुआ। अब आप एक लफ्ज़ ही बोलेंगे मैं आपको नीचे उतार दूंगा। अब आप एक लफ्ज़ ही बोलेंगे मैं आपको नीचे उतार दूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर साहब आइए, क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं? बात यह है कि इनके मुंह की बवासीर, अगला टॉपिक लो, कोई अगला टॉपिक और टॉपिक लो। नहीं, इन्होंने अपने मुंह की बवासीर निकालनी थी, वो आपने निकालने का फराहम किया है इनको, और इनको इनका दीन और इनका अकीदा नज़र आ गया है कि अपने अकायद की किताब एक तरफ, इनके फ़िक़्ह, इनकी शरीयत की किताबें, इनके जो दीनी फैसले हैं वो एक तरफ, इनके अमल अमाल, इनकी शरीयत, इनका नाम नहाद इस्लाम एक तरफ, और दूसरी तरफ ये दूसरों को जुदा करने के लिए उनके मानदीन की किताब पढ़ रहे हैं। मेरे भाई ने कालू साहब में ठीक है बात दुरुस्त नहीं की थी, बड़ी जोश में आकर उन्हें गुस्से में कह दी कि मैं रंगीला रसूल पढ़ देता हूँ या कुछ और पढ़ देता हूँ। तो असूली तौर पर मीज़ान के हवाले से बात दुरुस्त थी कि जिस तरह ये हमारे मानदीन और मुखालिफिन की किताब पढ़ रहे हैं, फिर असूली तौर पर तो वही किताब उसके मुकाबले पे बनती है, गो कि हमारी गैरत गवारा नहीं करती है। नहीं डॉक्टर साहब, वो किताब तो हमारी है ना, वो किताब तो मुझे भी प्यारी है जितनी किसी और को होगी। बिल्कुल, वो किताब जमात कहती है ना, जमात का ये मौकफ है। आपने मुझे एक बात सुनाई थी कि अगर कोई बंदा मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर कोई बोतान बांधे तो इल्जामी जवाब में थिएटर बंद करो। रंगीला रसूल लखवान वाले उसी मुकद्दस रसूल लिखी है। आमन नज़ीर से थोड़ा टाइम नहीं है, मेहरबानी को बोलोगे नहीं। डॉक्टर साहब, रंगीला रसूल की जहाँ तक बात है, वो कैसे कोई बंदा पढ़ सकता है? नहीं, मैं ये तो हरगिज़ कह ही नहीं रहा कि पढ़नी थी या पढ़नी चाहिए। बात तो ये है कि मैंने तो एक निज़ाम की बात कही है। वो जज्बाती था यार, ये एक सेकंड रुके। डॉक्टर साहब, आपने जैसे पहले फरमाया है
कि जज्बात में कालू साहब ने वो बात कर दी है, लेकिन हरगिज ये मतलब नहीं है कालू साहब का भी, ना हमारा। यही बात को करें, मतलब ना जमात का ये मौकफ है, ना जमात ये चाहती है। कोई एक बंदा उठ के ये कह दे कि जी मैं रंगीला रसूल पढ़ता हूँ, उसका मतलब ये है कि जमात का मौकफ ये है। वाले हैं, हमने उसका जवाब दिया है। आप टोक रहे हैं बीच में बार में, बार बार टोक रहे हैं, पर आप टोक रहे हैं बार बार ना। अब आपको मैं बात करने दे रहा हूँ, लेकिन आप टोक रहे हैं बार बार बीच में। जी डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ लीम साहब कि ये ड्रामेबाजी ना करें हमारे साथ। क्यों ना आपकी गैरत दोबारा नहीं करती, लेकिन सिर्फ वारी से कह रहे हो। ठीक है, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਘਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਟੋਕੋ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰੀ ਘਰ ਕਰਕੇ ਆਵੀ ਦੀ ਏ, ਇੱਥੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਤੇ ਕਰਾਈ ਦੀ ਏ। ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਕੋਈ। ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। इस बंदे को लगाम डालनी आती है आपको? ਅੱਛਾ, ਵਰਨਾ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲਾਇਆ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਖਤਮ। ਬੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਲਗਾ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਮਕਾਓ ਨਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਮਕਾਓ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਧਰੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜੀ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਖ ਰਾਤੀ। ਇਧਰੋਂ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਈਕਾਟ। ਤੇ ਬਾਈ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਆਏ ਬਾਈ, ਸਾਡੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਈ ਮੈਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਦੂਸਰੇ ਫਿਕਰੇ 'ਚ ਧਮਕੀ ਆਈ ਬਾਈਕਾਟ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀ ਬਾਈਕਾਟ? ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਮੰਨਦੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ 200 ਸਵਾ 200 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ 1 ਸੈਂਟ 1 ਫੁੱਟੀ ਕੋੜੀ ਨਾ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਬਰੋਡ ਤੇ 200 ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬਹੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰ ਪਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਲਸ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਲਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਸਾਨ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਨਾ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਵਰਗੇ 2 ਸੱਚੀ ਬੋਝੇ 'ਚ ਨੇ ਤੇ 3 ਖੱਬੇ ਬੋਝੇ 'ਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ आप अल्लाह वास्ते आके यहाँ पे ये ज़िया रसूल यहाँ पे फूल लेने के लिए तरले मार के आता है। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੱਲ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀਏ ਕੋਈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਮਕੀ ਨਾ ਲਾਏ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਏ, ਨਾ ਉਧਰ ਧਮਕੀ ਲਾਏ। ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਬਰੋੜ ਹੈ ਭਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਬਰੋੜ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਬਰੋੜ ਹੈ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਏ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਹੋ, ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕੁਝ 600 ਬਰੋਡਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ 2 ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ, ਆਹਿਸਤਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। लीम भाई इन्ना नहीं गुस्सा करीदा, कोई नहीं, ठंडे भी पईदा। और बाज़ दफा होंदा है यार, पता कि जो कोई सियासी मामला चल जाता ना तो बंदा थोड़ा जिहा गुस्से च बोल जाता। कोई नहीं, इन्ना हौसला रखा करो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ।
ਦੂਸਰਾ ਪਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾ ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 19 ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜੇ, ਮੈਂ 19 ਪੈਂਸ ਕਮਾਏ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਕਿੰਜ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਆਇਆ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ, ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇhtiyat ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ